Good afternoon, everybody. Am I audible? Yes. Okay, great. Okay, let's begin the mock analysis of 26th critical reasoning. Our emphasis will not be just to get the right answers for these or to know the reasons why questions are correct here. The main agenda is like to understand how can we get these type of questions correct in the next time onwards as well, right? Plus in the real exams. So let's discuss one by one. Talk about the first passage, which has questions from 106 to 110. You can tell me if you want me to discuss the passage as well, I can do that. Any specific question? Oh, sorry. First, tell me whether you want me to discuss the passage or not. Else we'll talk about the questions. Everybody understood the passage? Okay, good. Very good. Please share your questions from 106 till 110. Just type it in the chat box. Anybody? All questions are correct. So all of you got correct answers for 106 to 110. Okay, then let's move to the second passage. Passage number 2 talks about disparities in access to technology and digital solution necessitates different layers of payment and infrastructure. Question number 111 to 115. 114. Okay. Question number 114, which says, which of the following can be inferred from the information given in the passage? Okay. A, answer choice. If not for the proposed guidelines by the RBI, the payment service would have been discontinued. The transition limit set by the RBI serves a meaningful function. The RBI has arbitrarily set the lower and upper limit of the proposed offline payments, and the proposed guideline by the RBI would make sure that all the problems related to payment services are sorted. Which answer you marked? B. Okay. B says the transition limit set by the RBI serves a meaningful function. Okay. What is the meaningful function here? Paragraph 2, last sentence. Okay. Let's start reading from to avoid massive reconciliation issues that, or rather I would go to the first sentence of the second paragraph. So let's read the second paragraph and identify it. Okay, Divyansh, I'll do that after this, okay? After this passage, I'll come back to that. So I'm reading the second paragraph, which says RBI has laid down the guidelines for financial institutions and payment systems providers to participate in the offline payment system. Offline payment essentially means that a customer can complete a transaction without being connected to the internet. There is no need for transactions to be processed via the internet, thus avoiding an immediate need for connectivity to switches and clearing mechanism. This sentence says there is no need for transactions to be processed via the internet, thus avoiding an immediate need for connectivity to switches and clearing mechanism. So this is what they're describing about it. Further, to avoid massive reconciliation issues that might occur from the result of such offline transitions, RBI has proposed for us such offline transitions. Okay. What are the limits? As per the current guidelines, each transaction can be amount of up to 200 and with a total of 2200 cumulatively in an offline mode. This sounds perfectly relevant to the B answer choice, right? Where we see one problem where RBI has came up with the idea, why he has came up with the idea and why he has mentioned that timeline for a transition is clearly justifying it, correct? So, but it's not arbitrary. Come again? So it's not arbitrary. Correct. I'm coming to that. So if I read this, I can easily relate that, yes, sir,
the answer has to be B, but let's move forward. While the limit may sound as a constraint, a lower limit will ensure, I'm just going forward, okay? While the limit may sound as constraint, a lower limit will ensure that participants are not exposed to the large risk or damages. The scope of offline payment is not limited to remote areas where connectivity is a challenge. It is also relevant in this area. So the sentence just right after that, which is written, it says, while the limit may sound as a constraint, a lower limit will ensure that participants are not exposed to large risk or damages. Perfect. But the phrase which says the limit may sound as a constraint, which says that what RBI has done, they have justified one amount, they have put it an amount according to themselves. They have not checked it like what the amount shall be or shall not be. You get the idea? However, they have put it this limits. Why? Because the limits actually saving them from a loss. Okay. But how they have kept this amount, that is what the question was asking. So I'm coming back to the question which says what you can infer. Now it says the transition limit set by the RBI serves a meaningful purpose. What does this mean? Can someone tell me the meaning of this answer choice? Correct. Second answer choice says the RBI has arbitrarily set the lower and upper limit for the proposed offline payments. Okay. One thing is the consequence that I can call as a course of action, and another one is like what they have taken as an action. I gave you the reason why it sounds like RBI has done on their own. They have not checked it, whether it should be done the transition for the limit. And the B answer choice is actually a trap for you. Why? Here, RBI has kept it. What is the consequences? Do you know that? But B is giving that answer. B says, the transition limit set by RBI serves a meaningful function. Does it serve a meaningful function? The assumption was that it will gonna serve a meaningful purpose. Now people will not face losses, but is it happening or it's not happening? Do you have an idea? So meaning of B answer choice gives a trap to you that they are serving a meaningful function. They are serving a meaningful function. Are they serving a meaningful function? Can you tell me answer yes or no? How? How can you say yes? Giving the intention. So for example, let's say I'm saying that RBI has demonetized, or let's say government has demonetized the entire cash from the economy, right? Whatever the amount that we are having, 500 or 1000 rupees notes, now it will be of no use. Because of why government has done this, so that now there will be no some illegal transitions or some black money will be automatically wiped out. Correct? Now answer choice says that it is serving a meaningful function. Tell me, is it serving a meaningful function? They had a good intentions, but it is happening or not? Do you have an idea? You get the idea, Stavan? What I'm trying to say and what is written over there? They have talked about the intention, but they are not talking about course of action, whether it is happening or not happening. I hope now you all can understand that. Vrinda, is it clear? Yes, sir. Right? Why B is not the answer? It's clear now. Why we got into a trap? Because we are finding all words, all keywords there in the passage. But what ultimately they means, that's a different for us. Is it clear? Right? Arbitrarily, how they have came up with, I told you from the third paragraph, first sentence, while the limit may sound a constraint, but we're gonna do this and that. So ultimately, they are just trying to say that how they came up with this 200 and then 2000, no one has an idea. So they have done it on their own. I can say, although, let me tell you honestly, according to me, little bit words should have been little bit less extreme. Arbitrarily is very extreme, which clearly says that they have done it on their own, right? But okay, you can say they have done it on their own, but that too arbitrarily seems like a very extreme side, which should not be that extreme. But ultimately, this is the only choice that we can left with, because B is not inference, B is course of action. And always keep in mind, we should not go with inference of course of action.
You get the idea or not? भाई जो लिखा है हम उसके बेसिस पे बात कर सकते हैं ना, उससे क्या हो सकता है, ये यहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर यहाँ ये भी होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल द ट्रांजिशन लिमिट सेट बाय आरबीआई मे सर्व अ मीनिंगफुल फंक्शन, शायद हम इसको आंसर मार्क कर देते हैं। इज इट क्लियर? That's why 113 or 114 must have been cleared. Any more questions from 11 till 115 tak? Yes, Divyansh, you are right. Be like an opinion. Clear? So No I more just questions? have a doubt in 115. I marked A. A. Yes, the answer is Okay, B. Let's discuss. Without a guiding framework, we are discussing 115. Yeah, I'm coming to that, Divyansh. 109 will be discussing after completing this passage. 115. Without a guiding framework, payment companies found it unviable to invest at scale to solve this problem. What can be inferred to the author's opinion based on this claim? पहले ही जानते हैं कि जो ऑथर ने कहा है ये क्यों कहा है और कहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट? Whenever you are coming up with any kind of inferences which is very specific to the passage, I would suggest you to have a clear idea about what is the idea that they have mentioned in the passage. So कहाँ लिखा हुआ है ये? The first passage. Sorry, first passage. First passage. Correct. So before that it is written that what is true for urban areas will also be true for rural areas. It is imperative for the regulator and the government to have a more inclusive digital payment ecosystem. Without a guiding framework, payment companies found it unviable to invest at scale to solve this problem. Okay. So author is trying to defend the private companies that if they want to solve the problem, they needed their support, otherwise they cannot come up with a viable solution. Okay, let's read each answer choice and I try to identify. A, the solution to the problem as big as this would require the interference of the regulators. The guiding framework regarding the offline payment service would encourage companies to look out for the solutions. I think C and D में कोई confusion नहीं होगा, right? नहीं so मेरे को B इसलिए लगा था because मेरे को ऐसा लगा था कि why would companies look out for solutions? Okay, but companies की तो बात कर रहे हैं ना? Yeah, but then I got confused and then I marked A. मुझे लगता है शायद ठीक से इसको clearly पढ़ा नहीं. That is the reason might be confusion cleared. I mean confusion occurred. Yes, without okay. So Now problem solved. The so. thing is like they are not talking. I mean we should talk about the companies. They are encouraging them, right? Yes, sir. Now I got it. Okay. So no more questions from. Okay, doubt in 113. Let's discuss. Which among the following would weaken the argument made by the author in the passage? ठीक है, author ने जो भी passage में arguments दिए हैं उनमें से कौन सा choice इसको weaken कर रहा है? The government is on track to bring quality internet services to every part of the country in the next 2 months. Which answer you mark, beta? अच्छा, So why I is mark A B. also correct? ठीक है. Let's discuss why A is also correct. The government is on track to bring quality internet services to every part of the country in the next 2 months. अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहा है? क्या रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है? नहीं है ना? फीचर फोन्स यूज कर रहे हैं वहां के लोग और उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है और वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज क्लियरली नहीं है अवेलेबल. I mean, they were facing problems. So इसीलिए यहाँ पे ऑथर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसके कोई सॉल्यूशंस वायबल ढूंढने हैं, तभी तो ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस लेके आए हैं वो लोग. अगर इंटरनेट ही ठीक से काम करने वाला है 2 महीने में तो फिर ये सॉल्यूशंस की और इन सब करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए वीकन हो जाएगा. क्लियर है? आप हमेशा ये ना सोचिए कि क्या ये चॉइस आउट ऑफ स्कोप है या नहीं है. ऑलवेज कीपिंग इन माइंड गाइस, प्लीज ध्यान से सुनिए इस बात को, और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है. इन केस ऑफ स्ट्रेंथन एंड वीकन, करेक्ट आंसर आपका आउट ऑफ स्कोप होगा. इज इट क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है, मैं कह रहा हूँ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं.
आउट ऑफ स्कोप होने के। आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या हुआ? आपके पैसेज में उस सेंटेंस के बारे में नहीं लिखा होगा, लेकिन लाइन ऑफ रीजनिंग विल रिमेन सेम। ओके 114 भी है। ओके 114 तो अभी डिस्कस किया ना बेटा अपन ने। आदित्य क्या डाउट है इसके अंदर? इसका आंसर बी होना चाहिए ना? We just discussed कि why B is not the answer for 114 and it should be C. Sir, isn't it saying that it is to prevent that the participants are not exposed to large risk and damages? So it can't be stated now that the transaction limit has been set by RBI arbitrarily. So it's reflects a meaningful function now. What is the expose meaning मत of B answer choice, which says the transition limit set by RBI serves a meaningful function? How do you know whether it is serving a meaningful function or not? They Sir, had it a is written positive now. intentions to do that. They had a positive intentions to do that. But are they serving positively or not? How do you know that? But how can we say that it is arbitrary also? Arbitrarily is, I told you also, I just discussed it entirely in this class. I think you were not able to listen that. So what I'm trying to say, or what did I say, is like, they should have, they have not clarified how did they, you know, what I can say, set the limits of 200 to 2000. They have on their own, they have set it. That's why the author is using this word while paraphrasing. I also said that it should have been a little bit less extreme instead of using this word clearly. Okay. Right, right. I hope everything is discussed and you have understood the second paragraph. Now, one question from first passage is 109. If the information in the passage is true, then which among the following must also be true? ठीक है, जो ऊपर की ट्रू है इनमें से और कौन सी ट्रू होनी चाहिए? We're talking about passages Czech Republic ना? Chile is president. Okay, Chile. Which one you marked? This passage? First passage I'm talking about, 109 question. Which answer you marked, beta? दिव्यांश? अच्छा, अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। आदित्य क्या डाउट है इसके अंदर? मतलब चॉइस क्या मार्क करिए? I marked C, sir. C. Yes. Okay, let's discuss. The right-wing business class are not entirely unhappy with Mr. Borik's victory. How do we know that? हम इसे कैसे इन्फर करें? Must also be true का मतलब क्या हुआ? 100% correct होना चाहिए. Is it clear? Inference नहीं चाहिए यहाँ पर हमें. It has to be correct. That's what we needed. They are saying right-wing business class के जो लोग हैं, they are not entirely unhappy. कैसे इन्फर करें इसको, या 100% करेक्ट कैसे कहा जाए इस चॉइस को? एनी आइडिया थ्रू विच यू केम अप विथ? Sir, as of now, I am not. As of now? As of now, I am not able to recall what was the rationale behind it. I marked C option. I have a answer for A. Let me show you. Come to the first paragraph, please. Okay, this is the person. Welcome. Then Augusto Benato. Polls has been corrected. Instead, won by this. No, it's not written. Undoubtedly, many were driven by this. Nazi let's lies in the explosion of protests and the cost of living equal rights. Third paragraph. Okay. Yes, third paragraph, first sentence, please. Third paragraph, first sentence. Mr. Boric is the most left-wing leader since this person was overthrown by this time and was drawn into politics as a student protester, but he is hardly a firebrand. What does it mean? That we are trying to say that Mr. Boric is most left-wing leader
but he is hardly a firebrand. Now 109A choice says a rather extremist left-wing political leader is not necessarily a firebrand. As I told you, this is 100% true. Must be true means 100% should be true. That is the reason A shall be the right answer, because we have a strong reasons to match it. But here If we sir are going with necessarily our emotion, extreme yes, word नहीं है Aditya? और Sorry? necessary इसमें extreme word नहीं है बिल्कुल नहीं है. क्यों होगा extreme word? What does because it mean? in the It says passage it is saying hardly ना तो hardly मतलब थोड़ा सा तो chance होगा मतलब hardly is नहीं, not आप like words को छोड़ो, full एक मिनट मीनिंग बताओ मुझे. What is it meaning? the statement A हाँ जी, हाँ जी. that he is not a firebrand मतलब कोई chance ही नहीं है like 0% chance that he's a left wing political leader that is not a firebrand. 0% is very extreme what you are saying. Although यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि although he is a left wing leader, लेकिन बहुत कम chances हैं that he is a, और यार यूँ कहा जाए कि hardly ऐसा है कि वो एक firebrand है. ठीक बात है? So इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ कि left wing को firebrand माना जाता है. Am I right? समझ में आ रहा है? यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई लेफ्ट विंग का पॉलिटिकल लीडर है तो जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो फायरब्रांड हो ही. एक्चुअली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग. नेसेसरली इज नॉट ऑलवेज एन एक्सट्रीम वर्ड. वहां नॉट नेसेसरी लिखा है जो एक्सट्रीमिस्ट को अपने आप कम कर रहा है. अगर नॉट नहीं होता तो ये एक्सट्रीम होता. अंडरस्टैंड द मीनिंग. ओके, do not follow any black and white rule in verbal. English के अंदर black and white rules follow नहीं करने. I hope Aditya it's clear. Yes sir. Divyansh clear. Before moving to the third passage, मैं आपको बता दूं हमने क्या गलतियां करी हैं, उनको हमने कैसे करेक्ट करना है. Because my main motto is not to solve these questions or the passage. My main motto is next time onwards, if these questions will gonna come or these types of questions will gonna come, you has to get a correct answer. Is it clear? You all have to get a correct answer. पहली चीज देखिए, जरा समझने की कोशिश करिएगा. क्वेश्चन नंबर 109. क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे? What is question's expectation? पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी आंसर चॉइस यहाँ लिखा है वो 100% करेक्ट होना चाहिए. Whenever you see must also be true is itself extreme guys. उसे करेक्ट होना ही होगा. This is not inference. याद रखेंगे आप लोग. तो हमें एक ऐसा चॉइस चाहिए जिसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस पैसेज में मिलना ही चाहिए. Is it clear? तभी आप उसको मार्क कर सकते हैं. Whenever next time onwards you identify these words are there which says must also be true. वैसे मैं आपको बता दूं must also be true inference questions के ही एक टाइप है. ठीक है, इन्हें इन्फ्रेंस से अलग नहीं किया जा सकता. इन्फ्रेंस क्वेश्चंस के ही टाइप है. लेकिन इन्फ्रेंस क्या होता है? जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है. यहाँ पे आप देखेंगे ए चॉइस भी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पैसेज के हिसाब से उसे आप एकदम करेक्टली ड्राइव कर रहे हैं. अब किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को दिया जा सकता है एग्जाम में. ए स्टेटमेंट ये है, बी स्टेटमेंट ये है, सी स्टेटमेंट ये है. अब आपको एक ऐसा चॉइस पिक करना है जो 100% ट्रू हो, ऐसा आपको पिक करना है. समझ में आ रही बात? तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप मुझे आंसर देंगे. स्क्रीन विजिबल नहीं है, अभी विजिबल है आदित्य? राइट, ओके. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. इसके बेसिस पे आप मुझे बताएंगे ऐसे सेंटेंसेस जो 100% ट्रू है. ओके, लिसन केयरफुली. शेयर वंस अगेन. ओके, एक स्टूडेंट पिछले 2 घंटे से या लेट्स से 3-4 आवर्स से लगातार बुक को ही देखे जा रहा है. बुक लेके बैठा हुआ है, ना अपनी सीट से उठा है और ना वो इधर उधर अपना उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ है. ठीक है, वो लगातार अपनी सीट पे बैठ के अपनी बुक में ही आंखें गड़ाए हुए हैं. फाइन, ये पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट, उसने अपनी टेबल के सामने एक टाइम टेबल लगा रखा है और ये वो इंसान उस टाइम टेबल को देख के उसके हिसाब से जो टाइमिंग वहां लिखा हुआ है उस टाइमिंग के हिसाब से उसे पढ़ना चाहिए और वो पढ़ाई कर रहा है इस समय. क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग यू इज
उसकी जहां पे वो पढ़ाई कर रहा है, जिस टेबल पे वो पढ़ाई कर रहा है, वहां पे उसने बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। बताइए, एक ऐसा आंसर चॉइस दीजिए विच मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं? दैट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। जो आप बोलेंगे ध्यान रखिएगा, इट हैज टू मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। Shall I repeat those three sentences once again? First sentence that I told you is a student who is sitting on his chair looking at his books, ठीक है, and continuously is looking at his books from hours and he has not left his seat for a single point of time. Second statement, उसके सामने एक टाइम टेबल लगा हुआ है, उस टाइम टेबल के हिसाब में जो टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम में पढ़ना लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा है इस समय। और थर्ड, उसकी टेबल में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। मुझे बताइए इसके अलावा और क्या 100% ट्रू होगा? ठीक है, वो सारी बुक्स भी पढ़ेगा। क्या ये 100% ट्रू है? क्या ये 100% ट्रू है? नहीं। he is solemn towards his work, ठीक है, वो काफी डेडिकेटेड है, मेहनत कर रहा है अपने काम के लिए। क्या ऐसा कह सकते हैं हम? क्या ऐसा कहा जा सकता है? 100%। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा कि वो बुक में आंखें गड़ाए हुए, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ऐसा मैंने नहीं कहा। नहीं, पर मुझे नहीं पता वो पढ़ रहा है या कॉमिक्स पढ़ रहा है या वो सो रहा है या वो क्या कर रहा है। यस, ही इज फॉलोइंग टाइम। 4 से 5 लिखा था स्टडी करना, या लेट्स से 4 से 6 लिखा था स्टडी करना, एंड वो बुक खोल के सामने बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स में, मैंने कहा था बुक में आंखें गड़ाए हुए है। डजंट मीन दैट ही इज रीडिंग, ही इज चेंजिंग हिज पेजेस। हो सकता है वो सिर्फ खोल के बैठा हुआ हो सकता है। तो क्या वो सीरियस होगा अपनी स्टडीज को लेके? हो सकता है, हो सकता है। पर क्या ये कहा जा सकता है कि टाइम टेबल को सीरियसली ले रहा है? ये कहा जा सकता है, यस, वी कैन से दैट ही इज फॉलोइंग हिज टाइम टेबल रिगुलरली, ये हम कह सकते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत सीरियस है या पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन जो अभी तक एविडेंसेस है उसके हिसाब से ये बोल सकते हैं कि वो एविडेंसेस मतलब टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे करेगा नहीं करेगा, वी कांट से दो। इज इट क्लियर? तो ही सीरियस अबाउट स्टडीज हम नहीं कह सकते हैं, बट ये जरूर कह सकते हैं कि वो टाइम टेबल फॉलो कर रहा है। और बताइए, और क्या कह सकते हैं विच इज 100% ट्रू? नहीं, उसने अपने लिए टाइम टेबल बनाया नहीं कह सकते। हो सकता है किसी और ने बनाया हो, बात समझ रहे हैं? हो सकता है उसकी मम्मा ने बनाया, उसकी टीचर ने बनाया हो, उसकी ट्यूशन टीचर ने बनाया हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपने लिए टाइम टेबल बनाया। करेक्ट? और बताइए, ऐसे सेंटेंसेस दीजिए जो 100% ट्रू हो, जिसके ऊपर कोई भी इलॉजिकल चीज ना रहे, कुछ बचे ना, हैज टू बी करेक्ट। मेनी सेंटेंसेस देयर आर। अब आपको समझ में आ रहा है दिमाग को आप कैसे यूज कर रहे हैं? Are you guys understanding how are you using your logics and how you using your critical reasoning? So it's not logical actually. You are going by the critical side of it. ये है CR that you have to follow guys. मैं एक चॉइस दूंगा आपको, मुझे बताना क्या ये 100% ट्रू है नहीं है। उस लड़के को रीडिंग आती है, he can read। बताइए, क्या ये 100% ट्रू है नहीं है? Some of you are saying no. Okay, what about others? No. But that's true guys, 100% true है ये आंसर चॉइस, that he knows reading। पूछो क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि वो बुक पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, बुक में आंखें गड़ाए हुए हैं। दिस इज व्हाट योर आइडिया इज कि सर हो सकता है पढ़ाई ना कर रहा हो, लेकिन टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि इससे टाइम इस टाइम तक तो रीडिंग करनी है। इसका मतलब उसे रीडिंग आती है, अदरवाइज रीडिंग करनी है नहीं लिखा हुआ होता। इज इट क्लियर? तो चूंकि उसके टाइम टेबल में रीडिंग का टाइम फिक्स है, इसका मतलब उसे रीडिंग करनी आती है। वो करना चाहता है नहीं करना चाहता वो नहीं पता, और उसे रीडिंग करनी आती है। इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा है क्रिटिकल रीजनिंग क्या है? ये है, यहां दिमाग लगाना है। आप क्या कर रहे हो? कीवर्ड से भाग रहे हो। कीवर्ड से काम चलेगा? नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। यही गलती हमसे हो रही है। तो व्हेन यू सी द क्वेश्चन विच सेज मस्ट आल्सो बी ट्रू, 100% ट्रू चाहिए भाई। किसके हिसाब से? पैसेज के हिसाब से। आपकी लाइफ ज्यादा इजी है। पूछो क्यों? पैसेज में लिखा होगा ये चीज,
कहीं ना कहीं लिखी होगी, तभी आप इसको मार्क करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। समझ में आ रहा है हर एक को, राइट? सेकंड गलती जो हमसे हुई है वो हुई है पैसेज नंबर 2 में। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा दैट वाज अबाउट 113 क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन स्क्रीन पे ओपन कर दीजिए। 113 कह रहा है which among the following would weaken the argument made by the author in the passage। पहले रुक जाना, ये पढ़ते ही, ये क्वेश्चन पढ़ते ही रुक जाना है, आपको समझना है ऑथर ने क्या मेन क्लेम दिया है भाई पैसेज में, किसके ऊपर पीछे आगे पीछे भाग रहा है, ऑफलाइन पेमेंट्स, करेक्ट। ऑथर ये कहना चाह रहा है अर्बन तो ठीक है पर रूरल एरिया में क्या, जहां पे इंटरनेट नहीं चलता, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आरबीआई ऑफलाइन पेमेंट्स लेके आ रहा है, जिसके ऊपर इश्यू भी क्रिएट हुआ, 200 से लेके 2000 तक की लिमिट है, राइट। प्राइवेट कंपनीज भी कुछ करेंगी नहीं करेंगी, तो यू विल रियलाइज कि पूरे पैसेज में इसी के ऊपर कहानी हो रही है। एंड रियलाइज करिए गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस, भाई प्रॉब्लम फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखी है और सोल्यूशन भी लास्ट सेंटेंस में दे रखा है। RBI proposed offline payments framework can be game changer in fixing this challenge to financial inclusion in payments। So आपको पता लग गया साफ साफ कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है, उसको डिफाइन किया गया है पूरे पैसेज में। सो नाउ यू नो कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, मेन क्लेम क्या है। अब आप मुझे बताइए, आपको वीकन करना है तो उसके बियॉन्ड आप जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूँ। यस, आ गए आप चॉइसेस के ऊपर। आपने ए पढ़ा, ए को पढ़ के देखिए क्या इस आइडिया से ऑथर का प्लान वीकन होता है, यू विल रियलाइज हाँ सर होता है। यस, बी में हो रहा है, तो दोनों का आंसर को आपको मार्क करना है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हाट विल यू कीप इन माइंड इन केस ऑफ वीकन एंड स्ट्रेंथन क्वेश्चंस। पहला, आउट ऑफ स्कोप को एलिमिनेट नहीं करना है, कीवर्ड्स को मैच नहीं करना है। बिफोर कमिंग टू द चॉइसेस यू नीड टू क्लियर what exactly the main idea, main claim that we have to weaken or strengthen। clear everybody? कोई confusion नहीं है, right? ये सब आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, जिससे आपकी जो गलतियां हो रही हैं, आपकी सेट पैटर्न की गलतियां आएंगी जो आगे से नहीं रिपीट करनी है आपको। तो आप नेक्स्ट मॉक देंगे या कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके पहले ये गलतियों को रिपीट करेंगे, आप गलतियों को गो थ्रू करेंगे। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, एनालिसिस का मतलब यही है जो हम कर रहे हैं कि हमने जो गलतियां करी हैं उनसे हम सीखें और उन्हें दोबारा रिपीट ना करें, करेक्ट। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग नहीं करेंगे? मैं नहीं कह सकता ना ऐसा, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन, इन्फ्रेंस, बिल्कुल ठीक है, इन्फ्रेंस करना है हमें, मीनिंग को समझना है, लेकिन गाइस कीवर्ड्स को मैच नहीं करना है। इन्फ्रेंस क्वेश्चन विल टेक यू फॉर टॉस, बताता हूं क्यों। हमें आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, क्लेम मिलता है, एविडेंस मिलता है, पर इन्फ्रेंस क्वेश्चन में ना क्लेम चाहिए ना एविडेंस चाहिए, बेयर फैक्ट्स, बेयर स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब उससे भी आप इन्फ्रेंस कर सकते हैं। अभी बच्चे की पढ़ाई वाला एग्जांपल हमने देखा है, मैंने कोई क्लेम नहीं दिया, कोई एविडेंसेस नहीं दिया। सो ये इन्फ्रेंस क्वेश्चंस सबसे ज्यादा क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं। और आपको ये ख्याल रखने की जरूरत है कि अजम्पशन का आंसर देने से पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है पैसेज में, आपको उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम्पल अभी हमने चेक किया है। नेक्स्ट 115 हमने कोई क्वेश्चन देखा, इसके अंदर भी लिखा हुआ था विदाउट ए गाइड फ्रेमवर्क व्हाट इन्फ्रेंस, तो ये भी अगेन इन्फ्रेंस क्वेश्चन है, सेम लाइन ऑफ रीजनिंग पे आपको इसको भी सॉल्व करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं? सो ये गलतियों की जो हमने भी लिस्ट तैयार करी है, इसको हमें रिपीट नहीं करना है आगे, ये आपको ख्याल रखना है। यू मे नोट इट डाउन, यू मे कीप इन माइंड। वैसे मैं बता दूं, कीप इन माइंड ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बेटर होगा आप इसे लिख लें जिससे आप ये गलतियां रिपीट ना करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थर्ड पैसेज। ओके, जब इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में ऑप्शन ऐसे हो, लाइक फैक्ट मेंशन किया हो पैसेज से ही, एलिमिनेट कर सकते हैं जो मेंशन है। परिधि हैज आस्क्ड अ वंडरफुल क्वेश्चन व्हिच इज वेरी रेलेवेंट। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है, कि जब इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे हो जो एक फैक्ट की तरह से डायरेक्टली मेंशन है पैसेज में, तो क्या उसे एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है कि मैं आपको ये बोल सकूं कि इन्फ्रेंस क्वेश्चन पैसेज में मेंशन है इसलिए एलिमिनेट कर दो, या पैसेज में मेंशन नहीं है इसलिए पिक कर लो। ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट रूल नहीं है। कहां से देखना पड़ेगा? पैसेज का नेचर समझना पड़ेगा। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको, उसमें मैं अगर आपको ये बोल दूं
कि रीडिंग टाइम इज मेंशन्ड इन टाइम टेबल, बताइए क्या इसको हम ऑल्सो भी ट्रू कर सकते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो लिखा हुआ है, ये सेकंड स्टेटमेंट में सर मेंशन्ड है, तो इसको हम इन्फ्रेंस कैसे करेंगे? इन्फर का मतलब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग आप दे पाए, राइट? वेयर एन एट द सेम टाइम आई कैन नॉट से कि जो चीज नहीं लिखी हुई है वही होगी या जो चीज लिखी है वो नहीं हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि पैसेज का नेचर क्या है, राइट? इसीलिए मेरा सजेशन क्या होगा, जो लाइन ऑफ रीजनिंग मैं आपको दे रहा हूँ उसे फॉलो करें, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इन्फ्रेंस क्वेश्चन मतलब जो पैसेज के हिसाब से आप सबसे ज्यादा क्लोजली स्टेटमेंट दे सके वो इन्फ्रेंस होगा। क्लियर है? राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। थर्ड पैसेज, क्वेश्चन नंबर 116 से 120। आप यही बता सकते हैं अगर कोई पैसेज में आपको प्रॉब्लम है, वी कैन रीड दैट पैसेज। 118, ओके। Question number 119. Please show 119. Which among the following is true about the Hindu Succession Act 1956? Succession Act, which choice option based on the passage only? देखो साफ साफ लिखा है, सिर्फ पैसेज के हिसाब से ही जाना है, ठीक है? So we are discussing 119, तो लीगल नॉलेज ना लगाएं। मुझे लगता है एग्जामिनर ने अज्यूम किया हुआ कि ये लॉ को दिया जा रहा है, इसलिए उसने लिखा है ओनली एज पर द पैसेज। अदरवाइज आप लोग एक्सपर्ट हैं, पैसेज से आगे निकल जाएंगे। ये शायद ऑथर का असम्पशन था, ऐसा मेरा असम्पशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैसेज में कहाँ लिखा है पहले वो पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आंसर देंगे। पैसेज ये रहा, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है दिस एक्ट हाउएवर हैड मेड द डॉटर्स राइट टू हर फादर्स प्रॉपर्टी परफेक्टली क्लियर। क्या मतलब हुआ, इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि इस एक्ट में डॉटर का कितना राइट है फादर के प्रॉपर्टी में, ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, बढ़िया। आगे चलते हैं चॉइसेस के ऊपर। इतना पढ़ने के बाद में आई केम टू द चॉइसेस एंड नाउ आई विल सी कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। सो अभी तक आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दिस एक्ट कि भैया इसमें सब कुछ है। ए, द एक्ट हैज एटलीस्ट वन प्रोविजन फॉर ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। क्या मैं इसे अग्री कर सकता हूं? नहीं, एटलीस्ट वन। अगर देखा जाए तो पूरा एक्ट में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो अंडरलाइन कर लें परफेक्टली क्लियर पे, प्रॉपरली परफेक्टली क्लियर, अंडरलाइन करें इस पे, प्रॉपरली परफेक्टली क्लियर। क्या मतलब समझ में आया इससे? मतलब काफी अच्छे से मेंशन्ड है, राइट? So I can't go with at least one provision. Is it clear? Similarly, I'll come to the last one. This act had at least one provision that is conservative in nature. Is it clear? So I'm ultimately left with B and C. B says most of the provision of this act are progressive in nature. Can I mark this? As of now, I'll keep it. I don't mark it. क्योंकि मेरे हिसाब से तो perfectly clear है, परफेक्टली क्लियर है, राइट? तो मैं किसको मार्क करूंगा? इट हैज कंप्लीटली प्रोग्रेसिव, मैं इसको मार्क करूंगा। सी, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कैन आई कीप दिस? नॉट एट ऑल। अब देखो मुझे क्या चॉइस चाहिए था कि एकदम परफेक्टली क्लियर है, राइट? पर क्या चॉइस है मेरे पास अवेलेबल? मोस्टली क्लियर है, परफेक्टली नहीं है। विच वन आई विल मार्क? बी चॉइस। This is the closest answer that I am marking. हालांकि मैं कन्विंस नहीं हूं क्योंकि मैंने कहां पे क्लिक किया था? प्रॉपरली परफेक्टली क्लियर। तो मुझे क्या चाहिए था चॉइस में? 100% ट्रू, बट इट इज नॉट। इज इट क्लियर? यस आदित्य। Sir, I have a doubt in it. हाँ सर बेसिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट के एक एक्सपेक्ट को देख के थोड़ी हम कह सकते हैं कि दैट मोस्ट ऑफ द सेक्शन इन दैट पर्टिकुलर एक्ट विल बी प्रोग्रेसिव नेचर। या तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट को लेके गया हुआ है ना कि जो डॉटर से रिलेटेड राइट्स हैं दैट आर परफेक्टली क्लियर। सो इसमें से ये थोड़ी हम कह सकते हैं कि जो सारे सेक्शन उस एक्ट में होंगे मोस्ट ऑफ देम विल बी प्रोग्रेसिव इन नेचर। बेटा क्वेश्चन इसीलिए कह रहा है कि बेस्ड ऑन पैसेज आपको जाना है। पैसेज में जितना बताया जा रहा है उस एक्ट के बारे में उतने के बारे में बात करूंगा ना, उसके बाहर कैसे जाऊंगा? तो वहां पे बट सर एक्ट फिर को भी रेफर ही एक इस नाम से एक्सपेक्ट को किया देख गया के है कैसे? कि ये। यस बेटा, फिर भी एक एक्सपेक्ट गिवन है ना उसमें, तो
उससे फिर हम पूरा एक्ट थोड़ी प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि उस एक्ट में और भी चीजें हो सकती हैं। आई हैव नो आइडिया कि एक्ट में एक ही चीज होती है, बहुत सारी होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट हाउएवर हैड मेड दिस क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये मैं कैसे मान लूं जो चीज लिखी हुई नहीं है उसको मैं कैसे निगेट या एक्सेप्ट करूं? अंडरस्टैंड, ये आपको पता है बिकॉज आप लॉ के स्टूडेंट हो, पर मुझे नहीं पता कि लॉ के विदाउट बीइंग अ लॉ स्टूडेंट की लॉ के एक्ट में एक इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी होती है। आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा दिमाग चला रहे हो, पैसेज के बियॉन्ड जा रहे हो। पैसेज में लिखा है कि इस एक्ट ने ये चीज क्लियर कर दी है, तो व्हाट आई कैन टॉक अबाउट, जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में लिखी है उसी के बारे में बात करनी है मुझे, करेक्ट है? तो अगर वहां लिखा हुआ है कि भाई इस एक्ट के हिसाब से कौन सी चीज ट्रू है, तो मुझे वो सिर्फ बतानी है। आपको समझ में आ रहा है आदित्य? So that time I'm getting, but why option is wrong then? At least ठीक तो है, मतलब एक प्रोविजन उसमें कह सकते हैं प्रोग्रेसिव है। I'm finding your rationale quite sound, but A option कैसे गलत है? Okay. Understand the question from the layman's perspective. You guys are also facing the same problem? Is it? Okay, let's understand. What we have to do? We do not have any idea about the act. Is it clear? We are not a law student for time being, okay? Otherwise, लगेगा आपको सर क्या बोल रहे हो? So for time being, let's understand the question what it says. Which among the following is true? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा ट्रू है? किसके हिसाब से? इस एक्ट के बारे में किसके हिसाब से चूज करना है? पैसेज के हिसाब से चूज करना है। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या रेफरेंस लूंगा बताओ? पैसेज। मैं गया पैसेज में, मैंने पढ़ा पैसेज कि ये मेड करता है, क्लियर कर रहा है राइट को, एकदम परफेक्टली क्लियर कर देता है। इज इट क्लियर? तो क्या मैं ये मान के चलूं कि नहीं नहीं सर एक्ट में तो एक ही इंफॉर्मेशन थोड़ी होती है, बहुत सारी और भी होती होंगी, एक चीज को क्लियर कर रहा है पर बाकी चीज तो अनक्लियर होंगी? क्या मैं एज्यूम करूं? क्या मैं उन चीजों के बारे में बात करूं जो यहाँ पे नहीं लिखी गई हैं, या मुझे पता होना चाहिए उनके बारे में? नहीं ना, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक एक्ट है, उसने ये चीज क्लैरिफाई कर दी है। तो इफ आई एम कोटिंग इट समवेयर फ्रॉम द क्वेश्चंस, व्हाट डज इट मीन? दैट आई एम रेफरिंग कि इसने ये एक्ट ने ये चीज को क्लियर कर दिया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं भी कल का आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं पे, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि 1991 में कोई प्रोविजन पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि कोई एक्ट वैक्ट पास हुआ था शायद, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी धार्मिक स्थल जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, उनको हम टच नहीं कर सकते। आप सबने सुना होगा ये शायद, राइट ना? लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई हैं। बात समझ में आ रही है? उसमें बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई हैं, कई सब सेक्शंस हैं उसके, कई सेक्शंस हैं उसके, उनमें से कुछ चीजों को ओमिट भी किया गया है, कुछ चीजों को रिपील भी किया गया है। लेकिन जब भी हम उस एक्ट की बात कर रहे हैं या अगर उस एक्ट को रेफर किया जा रहा है तो क्या बताया जा रहा है? उस एक्ट में ये कहा गया है। एम आई राइट? क्या हम उन चीजों की बात करते हैं जो उसमें नहीं लिखी हुई है या जो उसमें और भी चीजें लिखी हुई हैं? नहीं ना। तो ये हुई जनरल अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से भी यू डोंट हैव टू डू। सेकंड थिंग, यहाँ साफ साफ लिखा है गो एज पर द पैसेज। तो पैसेज के अंदर एक चीज लिखी है, वी शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है आदित्य? Yes sir. सो ये हमारी लर्निंग क्या हो रही है? इससे लर्निंग ये हो रही है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखें, आपका काम करेक्ट आंसर लाना नहीं है। इज इट क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना इज नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू सेलेक्ट द बेस्ट आंसर आउट ऑफ 4, दैट्स इट। 4 चॉइसेस में से बेस्ट आंसर कौन सा है ये पिक करना आपका काम है। आपका काम परफेक्ट आंसर लेके आना नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि एग्जामिनर ने आपके हाथों में पैरों में बेड़ियां डाल रखी है चॉइसेस की, आपको खुली छूट नहीं दी है, सब्जेक्टिव बना के नहीं दिया है क्वेश्चन कि अपना पसंद का आंसर लिख दो भाई जो बेस्ट लगता है आपको। इज इट क्लियर? तो आप उस मोड में मत जाओ। व्हाट यू हैव टू डू, आउट ऑफ 4 जस्ट पिक द बेस्ट वन। अंडरस्टैंड, आपको दिमाग को समझाना है ये चीज। यस बेटा, कुछ कहना है? इज इट क्लियर? So 120th question जो है इसमें must be true if information is in passage is true. तो Sorry this Vrinda, was which question you are talking about? 120th. 1 minute, 1 minute. I'll come back to it. Yes, beta, you were saying something? नहीं, हाँ हो सकता था अगर वो एक्सट्रीम होता तो।
in that case. लेकिन देखो ये चॉइस भी एक्सट्रीम नहीं बनाई है इन्होंने, इसको कहा है मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, और वहां पैसेज इनफैक्ट एक्सट्रीम कह रहा है कि परफेक्टली क्लियर, ये चॉइस एक्सट्रीम नहीं है, कह रहा है मोस्टली क्लियर। अगर यहाँ लिखा होता कि एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिव इन दिस एक्ट, तो आप इसे एक्सट्रीम कहते हैं, यस और नो, पर आपका पैसेज कह रहा है ऐसा बात, प्रॉपरली परफेक्टली क्लियर, वो एक्सट्रीम है एक्चुअली देखा जाए तो। पर जब पैसेज ही यहाँ तक चला गया तो फिर हम क्यों रुकने वाले हैं उस पर, हम नहीं करने वाले। जब मैं आपसे ये कह दूं कि सारे लोग ये करेंगे ही करेंगे, तो मैं अब आप लोग इसमें एक्सट्रीमनेस निकाल पाएंगे नहीं, बिकॉज पैसेज इज एक्सेप्टिंग यू टू डू दैट। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा है ना एक्सट्रीम क्या होता है? एंड ऑलवेज कीप इन माइंड you don't have to get the right answer or correct answer, you just have to select best answer out of 4. Moving to the next one, so I can see 1 1, okay, why can't A be the answer of 117? Okay, I'll discuss. So 116, 117 and 120. So 118 को छोड़ के हमें सब डिस्कस करना है, ठीक है? I'll discuss 116, 117 and then I'll come to 120. 116, for which of the following claims has the author not presented any supporting evidence? ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन था बेटा 116 के अंदर? पॉलिमी क्या आंसर मार्क किया आपने, बताओ फटाफट से। सी, स्टेट लॉज में कॉन्फ्लिक्ट विद द व्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बेटा स्टेट लॉज में कॉन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल उसने दिया हुआ है पैसेज के अंदर, राइट? तो इसके लिए इसको हम नहीं पिक कर सकते। अल्टीमेटली देखा जाए तो सारे क्लेम्स के आंसर्स ऑथर ने प्रोवाइड करा रखे हैं, इसलिए वी कांट एलिमिनेट, सॉरी वी कांट सेलेक्ट दीज चॉइसेस। सेकंड पैराग्राफ में यू विल फाइंड इट, ओके? नेक्स्ट कम टू 117, with which of the following would the author agree with? Okay, आपने कहा A क्यों नहीं हो सकता 117 का, ठीक है, let's discuss A. Which of the following would the author agree with? Author इनमें से किस बात पे agree करेगा? अच्छा एक बात बताओ, whenever a question is coming and asking, author इनमें से किस पे agree करेगा, हम कैसे आंसर देंगे उसका? मतलब पैसेज में वो क्लियरली लिखा होगा, राइट? तभी उसका एविडेंस दे पाएंगे ना हम। Saying something? Yes, sir. Are you saying something? No. Correct. Okay, let's move on then. A answer choice says the Madras High Court is a court with an archaic mindset. अच्छा बताइए कैसे इन्फर किया जाए इस चीज को, कैसे माने कि ऑथर एग्री करेगा? कहाँ लिखा है ये? कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ जहां मद्रास हाईकोर्ट की बात हो रही है, ठीक है? सो मद्रास हाईकोर्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? एनी कंफ्यूजन गाइस, बैक बेंचर्स? एनी कंफ्यूजन? क्या हुआ? अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 117 वी आर डिस्कसिंग, चॉइस नंबर ए। पैसेज को पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट पार्ट। The case came to the highest court of the appeal after the trial court of Madras High Court had dismissed a woman's claim to 1/5 of her father's inherited property among 5 heirs. The property had originally passed from the father of the daughter and he died this. After this death, the property was inherited by this. Now tell me, where can we infer, or from where we could infer that the Madras High Court is a court with an archaic mindset? Ultimately, कोर्ट का माइंडसेट डिस्कस किया जा रहा है या सेट किया जा रहा है। बताइए कैसे हम इसको बोले कि ये ऑथर इस पे एग्री करेगा या नहीं करेगा? एनी इन्फ्रेंस आदित्य? करेक्ट, सो देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट, दैट्स हाउ वी कांट मार्क दिस आंसर, दैट्स व्हाई ए इज नॉट द राइट आंसर। हाँ, through that way we can simply say C, why C is not the answer. So C को हम फिर भी पिक कर सकते हैं, but A बिल्कुल भी नहीं हो सकता। I think Aditya, the confusion is clear. Moving towards 120 now. Which of the following must be true if the information in the passage is true? ठीक है, must be true अभी हमने डिस्कस किया था। My question was कि this type of question is an inference, right? Yes. Okay.
So then I was confused कि जैसे A में लिखा हुआ है कि all states of India would have to give inheritance rights to daughters. तो ये वाला गलत हो गया because one second. करेक्ट, बिकॉज ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में हम कुछ कह सकते हैं नहीं कह सकते, दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक ऑफ, Yes. हाँ ठीक है. Right. Got it. करेक्ट. दिव्यांश, एनी कंफ्यूजन बेटा फॉर द सेम क्वेश्चन? एनीबॉडी? 120? ठीक है, सो क्लियर हो गया. ओके, हाउ कैन सी बी करेक्ट? Why C is the answer? Okay, let's discuss. So passage 4, please read 2 questions wrong and left. ठीक है Vrinda, no worries. I'll talk about it. 4th passage. But let's understand why C is the right answer. Okay. Supreme Court's pronouncements may not have legal effect in all of India. See, okay, always keep in mind 120 जैसे questions है ना, इनको करेक्ट और इनकरेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, या तो इंफॉर्मेशन की या फिर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू की. करेक्ट है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. 120 का आंसर सी है. अब क्वेश्चन ये है कि सी क्यों है? डू वी हैव एनी रेफरेंस फॉर दैट जिसके बेसिस पे हम बता सके कि इसका आंसर सी है? सो आई विल सिंपली का गो एग्जांपल विथ दिया हुआ है. कौन सा यूपी का एग्जांपल दिया हुआ है. पैराग्राफ? Last. Okay, last paragraph, correct. In Uttar Pradesh, for example, married daughters are not primary heirs. This is just one instance among many that demonstrates women's difficulties in assessing rights and controlling inheritance properties. Society has far to go to catch up with the progressive understanding of the Supreme Court. Absolutely right. So based on this part, we can simply say the Supreme Court's pronouncements may not have legal effect in all of India. Number 1 reason. Number 2 reason, बाकियों के लिए 4 में से बेस्ट कौन सा है वो हमें सेलेक्ट करना है. ये अंडरस्टैंडिंग को आप मत भूलिए. दिस विल गोना हेल्प यू टू डिटरमाइन करेक्ट आंसर्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. अब बात करते हैं पैसेज नंबर 4. प्लीज रीड माय 2 क्वेश्चंस रॉन्ग एंड 1 लेफ्ट. ठीक है, सो यू वांट मी टू डिस्कस द पैसेज? वी कैन डू दैट. पैसेज नंबर 4, ऑल क्लियर? 1 मिनट दीजिए गाइस मुझे. बेटा कशनी, वी कैन सी इन द पैसेज इट वाज क्लियरली रिटन कि भाई सोसाइटी जितनी मतलब सुप्रीम कोर्ट जितना प्रोग्रेसिव है उतनी सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि यूपी का एग्जांपल देखा जहां पे ऐसा नहीं हो रहा था. करेक्ट. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोनाउंसमेंट्स है वो पूरे इंडिया में अब तक नहीं पहुंच पाया है शायद. तो यस, हमारे पास एग्जाम्पल है यूपी का, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स होंगे. इसकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं कशनी. क्लियर?
Just give me a minute, guys. Okay, guys, let's discuss the fourth passage. I'm reading the passage. Let's listen carefully and then we'll talk about the questions and answers. Waste as a phenomena is actually a relatively recent concept. The way I read, I'll tell you. I always emphasize first paragraph and last paragraph. मैं बहुत ध्यान से और धीरे-धीरे पढ़ता हूँ. बाकी की information I sometimes skip or I speed read. When I feel evidence है, मैं skip read करता हूँ या speed read करता हूँ. लेकिन first sentence, first paragraph, last sentence, last paragraph, I read it clearly and thoroughly. Plus, जहाँ भी author कुछ कहना चाह रहा होता है, उसको मैं ध्यान से समझता हूँ and relate करता हूँ. Similarly, I'll be reading. Waste as a phenomena is actually a relatively recent concept. कौन बोल रहा है? Author बोल रहा है. तो ये मुझे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. इसी के आगे पीछे उसने पूरी कहानी लिखी है. क्या बोल रहा है? Waste as a phenomena is actually a relatively recent concept. मतलब पहले waste नहीं होता था, ये मैं अपने आप समझ गया. उसने बोला थोड़ी, मैं अपने आप समझ गया. मैं ये इन्फ्रेंस है. Is it clear? आगे देखते हैं क्या कहता है. It was only with the advent of industrial revolution and its massive simulation of production that the material byproducts of extractions and manufacturing begin to accumulate in mountainous heaps. The modern idea of waste, therefore, is only 250 years old. क्या समझ में आया? Because of ABC, we started happening it. So it's just 250 years old. Is it clear? Otherwise, there was no waste as a pronouncement. Is it clear? तो पैसेज के बारे में उसने एक क्लेम कर दिया है स्टार्टिंग के अंदर ही. क्या उसे एविडेंसेस देने पड़ेंगे? क्या उसे सपोर्टिंग क्लेम्स देने पड़ेंगे? मजबूरी है उसकी. अंडरस्टैंड. फर्स्ट, contrary to what we might assume, wastefulness is not a natural human instinct. इसने बोल दिया contrary to what we assume, might assume. We had to be taught how to do it. इसके हिसाब से wastefulness क्या है? ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है, हमें सिखाया गया है. कैसे सिखाया गया है? आगे पढ़ते हैं. Disposability was one of the great social innovative of post-war society in the United States. तो disposability के बारे में हमें सिखाया गया है. When the first disposable products became available in the 1950s, from TV dinner meal tryers to cocktail cups, consumers had to be persuaded that this magical new substance, plastic, was not too good to be thrown away. They had to be instructed in the advantages of the throwaway society. Corporations, in particular, the petrochemicals industry, spent many years and millions of dollars lobbying for the replacement of paper grocery bags with plastic ones. With the advent of supermarkets and the help yourself service culture, every product now had to be individual packed to survive on the shelves. And with the full bloom of convenience culture and take away everything, disposability reached its apogee. Last sentence को दोबारा पढ़ूंगा मैं. With all this, disposability reaches its pinnacle, its top, reaches its top, reaches to apogee. क्या कहा जा रहा है? पहला सेंटेंस में बोला डिस्पोजल हमें सिखाया गया है. क्यों बोल रहा है ऐसा? पहले पैराग्राफ में बोल रहा था साफ साफ कि वेस्ट फिनोमिना नया है, पुराना नहीं है. 250 साल पुराना है. कैसे है वो पूरा डिफाइन किया. और लास्ट में क्या बताया कि इन सब की वजह से डिस्पोजेबिलिटी कहां पहुंच गया? टॉप पे पहुंच गया. क्लियर? आगे. Some observers were quick to disapprove. अच्छा, तो कुछ अब कॉन्ट्रास्ट भी दे रहा है. This person book, The Waste Makers, offered a searing critique of the mid-century US at the height of its consumerist pomp. He details at length the different forms of planned obsolescence, from produced products engineered to fail to those that are simply meant to be more desirable than last year's model.
And at almost every level of society, it is understood that such obsolescence is necessary features of healthy economy. From politicians to cynical businessmen to disillusioned designers to consumers who think it is the patriotic duty to shop and support the economy. क्या हो रहा है सब? Correct. आगे, the very idea of the lifetime guarantee conjured up the specter of unemployment and shuttered factories, the waste makers, is an X-ray of the American way of life. A society that replaces scarcity with overabundance, forced fed and easy credit on urban swell, fact sees the problem as largely ethical. His concern is moral decay and then sell, commercialization of everyday life, yet at no point does he envision an ecological catastrophe. Soon after, this person's about the devastating effects of agricultural pesticides would start to alert people to this problem. अगर मैं आपसे कहूं कि इस पैसेज में ये बताया गया है कि डिस्पोजल क्या है, डिस्पोजल कैसे शुरू हुआ, हमें डिस्पोजल के बारे में कैसे पता लगा, ठीक है, ये इन सब चीजों के बारे में कैसे पता लगा, क्या वर्ड था, वेस्ट के बारे में, और हम क्या करते आ रहे हैं इसके बारे में, तो क्या गलत होगा? नहीं होगा, राइट? क्या मैं कह सकता हूं कि भाई वेस्ट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ग्रो हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उसकी क्या क्या स्टेजेस रही, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा, और कैसे आज हमें इतनी नॉलेज इसके बारे में? दोबारा बोलिए. कहां पर है? Third paragraph, fourth line. Okay, and almost every level of society, it is understandable that such obsolescence is necessary features of a healthy economy, from politicians to cynical businessmen to disillusioned but complaint designers to consumers who think it is their patriotic duty to shop and support the economy. ये वाला ना? They're talking about the disposal. They're talking about कि लोगों तक ये चीज कैसे पहुंचाई गई, मतलब वेस्ट को कैसे मार्केट किया गया. भाई ऊपर क्या लिखा था सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में? ये हमें टॉट किया गया है, तो वो कैसे किया गया वो समझाया जा रहा है. यहां से लेके इस आदमी तक को, इस आदमी से लेके इस आदमी तक को, और इसको पेट्रियोटिक ड्यूटी से जोड़ दिया गया है. हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, या हमारी कंट्री को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए. तो कुल मिला के ऑथर क्या कर रहा है, कुछ क्लेम्स कर रहा है जो मेरे एम्फेसिस थे. मैंने दोबारा रिपीट करना चाहूंगा. पहला, वेस्ट नया नहीं है, पुराना है. सही बात है? वेरी गुड. क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, यस, लिसन केयरफुली एंड टेल मी इफ आई एम मेकिंग समथिंग रॉन्ग. सो मैं कह रहा हूं कि वेस्ट पुराना नहीं है, नया है. कितने साल पुराना? 250 साल. इससे ज्यादा पुराना नहीं है, राइट? अब ये कैसे आया, कहां से आया, ये सिखाया गया है हमें. कब से शुरू हुआ? करेक्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस वगैरह आए. 1950 के अंदर पहला वेस्ट प्रोडक्ट बनाया गया था डिस्पोजल को लेकर के, राइट? उसके बाद में लगातार ये किस तरह से इवॉल्व किया गया, या यूं कहूं करवाया गया, और आज तक हमें किस तरह से इसके बारे में बताया गया, ये पूरा पैसेज डिस्क्राइब कर रहा है. करेक्ट है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये प्रीमाइस ही है, काउंटर प्रीमाइस नहीं है. इट इज सपोर्टिंग इन द सेम फॉर्मेट. ठीक है, ये इसी को सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया. मैं सीधे जाऊंगा लास्ट सेंटेंस के ऊपर. Soon after this spring, about the devastation effects of these agricultural pesticides would start to alert people to this problem. इसके बाद में अलर्ट करना शुरू कर दिया गया लोगों को. तो आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक इसने काउंटर नहीं किया है, और ही हैज सपोर्टेड इट. क्लियर, नॉट क्लियर, राइट? तो चलें अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most strongly supported by the information given in the first paragraph? हमने फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से समझा है. आई वोंट सजेस्ट यू टू गो बैक टू दैट फर्स्ट पैसेज अगेन. अब हमें स्ट्रांगली एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि आप जो कीवर्ड मैच करने की सोच रहे हो ना, वो हर चॉइस में दिए जाएंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड. ए, बिफोर 250 years ago, all the machines and equipment used did not leave any waste material. हाँ जी, why to eliminate this choice? Tell me. जोर से बोलिए. एक्सट्रीम. ओके, एक मिनट सुनिएगा जरा.
ए चॉइस आंसर एक्सट्रीम नहीं है। ओके मैं बताता हूं क्यों। एक्सट्रीम क्या होता है गाइस? सर ये थोड़ा सा आगे चला गया, नहीं तो एक करेक्ट था। इज इट क्लियर? व्हाट इज एक्सट्रीम? ध्यान से सुनना। यस ये बोलिए आप कि पता नहीं था, ये नहीं बोलेंगे कि एक्सट्रीम था। ऑलवेज कीप इन माइंड एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है। सर दिस कैन बी द करेक्ट आंसर बट थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, इसको आप एक्सट्रीम बोले। पर जो चीज हमें पता ही नहीं है, जो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, उसको आप एक्सट्रीम नहीं बोलेंगे। क्लियर? गुड। सो ए इज नॉट द आंसर। लेट्स करेक्ट आदित्य। नेक्स्ट बी. The inventors and scientists of last 2.5 centuries are inefficient when compared to their predecessors. बताइए एक्सट्रीम है या नहीं है? करेक्ट। एक्सट्रीम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आउट ऑफ स्कोप। हालांकि ये लिखा है साफ साफ आर इनएफिशिएंट, बट यहाँ कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। आप देखिए चॉइसेस में क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है किस किस का? पुराने वालों का और नए वाले साइंटिस्ट का, बट वो कंपैरिजन नहीं पता हमें। ऐसा पैसेज पैराग्राफ 1 नहीं कह रहा। आउट। सिंपल। सी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस समटाइम्स अराउंड 2.5 centuries ago. क्या कोई रीजन है इसको एलिमिनेट करने का? नहीं ना, एज इट इज लिखा हुआ है साफ साफ, करेक्ट है। विल कीप दिस। लास्ट. The amount of byproducts of extraction and manufacturing in the last 250 years is less than before the industrial revolution. अब आप में से कोई मुझे बोलेगा कि सर ये सी तो एज इट इज लिखा हुआ है पैसेज में, ये क्यों मार्क कर रहे हैं आप? क्या आप कोई नहीं बोल रहा आप में से मुझे क्यों ऐसा कि सर ये इन्फ्रेंस कैसे हो सकता है, तो एज इट इज पैसेज में लिखा हुआ है। वेरी गुड। दो एविडेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ के निकाला गया है, तो इसलिए बोल नहीं सकते डायरेक्टली। अगर मान लीजिए डायरेक्टली भी लिखा होता तो भी आंसर होता। करेक्ट। तो फिर आप ये सोचते हैं सर का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कई बार आप बोलते हो आउट ऑफ स्कोप लिखो, कई बार आप बोलते हो इन स्कोप मत लो। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन आपको कितना आसानी से समझ में आ रहा है। आपको 4 में से बेस्ट पिक करना है, सिंपल। तो स्ट्रांगली एलिमिनेट करना है। बिल्कुल सही कह रही है परिधि। परिधि सेज ऑल, नो, वेरी, मोस्ट, मस्ट बी, दीज आर द वर्ड्स जिनसे समझ में आता है। यहाँ देखते हैं आपका दिमाग की घंटी बज जाती है, ये तो एक्सट्रीम है, निकाल दो इसको। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इज इट क्लियर? अपने दिमाग को ट्रेन करो इस तरह से, इसको इनकलकेट करो कि ये वर्ड देख के एक्सट्रीम मार्क नहीं करना है। एक्सट्रीम का मतलब ये होता है जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है ना, तो 2 चॉइसेस बना दी जाती है, एक एकदम करेक्ट है, एक थोड़ी सी एक्सट्रीम है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? एकदम करेक्ट, बिकॉज एक्सट्रीम इटसेल्फ इज अ कंपैरिजन गाइस, अंडरस्टैंड। एक्सट्रीम कब बोलेंगे आप? व्हेन यू आर कंपेयरिंग। सर इस आंसर चॉइस के कंपैरिजन में ये एक्सट्रीम है, तब एक्सट्रीम है। इज इट क्लियर? अदरवाइज वो एक्सट्रीम नहीं है। याद रखेंगे, राइट? जैसे मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ, मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ बहुत मोटे लोगों से, तो मैं अपने आप को पतला मानता हूँ, भले ही मुझे लोग मोटा समझते हो। यू गेट द आइडिया? थैंक यू। झूठ बोलने के लिए तो धन्यवाद। अगर ओनली और ऑलवेज जैसे वर्ड्स आए तो फिर हम नहीं ऐसा अज्यूम कर सकते कि वो एक्सट्रीम है। यस, उनको बिल्कुल भी आपको 100% एक्सट्रीम नहीं, सॉरी अज्यूम नहीं करना है कि ये वर्ड आते ही एक्सट्रीम हो गया, एलिमिनेट कर दो। मोस्ट लाइकली कहा जाता है कि एक्सट्रीम होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जहां भी वर्ड आ गया एक्सट्रीम। मैंने कहा ना, वर्बल में ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट कह सकूं। इंग्लिश के तो बेचारे वर्ड भी ऐसे नहीं है जो एक्सट्रीम कहे जा सके कि इसका मीनिंग हमेशा यही होगा। वही बेचारे इधर चले जाते हैं कई बार। एम आई राइट? सो यू शुड नॉट गो विद दैट डायरेक्शन। आई गेस इट इज क्लियर, राइट? चलिए आते हैं वापस डी पे। Amount of byproducts of extraction and manufacturing last 2 years is less than before the industrial revolution. Obviously, this comparison is also out of scope. Ultimately, 1-to-1 का आंसर सी ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि 1-to-1 का आंसर क्यों है सी। मैं समझा रहा हूँ कि अगली बार भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, 1-2 शो कर दीजिएगा। What does the author suggest in the passage? ऑथर क्या सजेस्ट करता है पैसेज के अंदर? कैसे आंसर देंगे भाई? पैसेज पढ़ा है ना हमने, उसके बेसिस पे हम आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑथर ने बोला है उसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा। सिंपल वे। चलिए शुरू करते हैं।
Humans have always been known for being wasteful. कितना बढ़िया आंसर है, करेक्ट, सही है। अगर आप रिसेंटली कहीं घूम के आए हुए हो, आपने वहां गंदगी के ढेर देखे हुए हो, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही आंसर है सर, मार्क कर दो। नहीं ना, तो क्या मैं यहाँ इसको एलिमिनेट करूं बिकॉज सर ऑलवेज लिखा हुआ है जो कि एक्सट्रीम है, इसलिए एलिमिनेट करूं, या ये कहूं कि सर ये आउट ऑफ स्कोप इन्फॉर्मेशन है, बताइए क्या बोलना चाहिए मुझे। एक्सट्रीम के लिए ई लिखिए, आउट ऑफ स्कोप के लिए ओ लिखिए। करेक्ट, वेरी गुड, आउट ऑफ स्कोप, वेरी गुड। एक्सट्रीम नहीं बोलेंगे बच्चों इसको, एक्सट्रीम तब होगा जब यहाँ ऑलवेज हटाते ही सही हो जाएगा। मतलब मैं ये कह दूं ह्यूमंस हैव मोस्ट लाइकली नोन फॉर बीइंग वेस्टफुल, बताओ क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं सर ये भी सही नहीं है, तो फिर एक्सट्रीम कैसे हो सकता है? ध्यान रखेंगे एक्सट्रीम तब होगा जब वो चॉइस करेक्ट होगी, अगर एक्सट्रीम हटा दे तो, है ना, इसलिए ये चॉइस आउट ऑफ स्कोप है, ऐसा पैसेज कहीं कह ही नहीं रहा। चलो आज कम से कम एक चीज तो क्लियर हुई कि ये एक्सट्रीम और आउट ऑफ स्कोप में क्या डिफरेंस है, और आप लोग एक्सट्रीम की वजह से इसको एलिमिनेट करना आप बंद कर देंगे। बी चॉइस, लाइफ टाइम गारंटी इज समथिंग दैट शुड बी डिस्करेज्ड। हाँ भाई, क्या ये ऑथर सजेस्ट कर सकता है? क्वेश्चन को पढ़े, कितना प्यार से लिखा हुआ है, ऑथर सजेस्ट, हमने अच्छे से पढ़ा है ऑथर क्या कह रहा है। सर द ऑथर सेज ह्यूमंस वर नॉट ऑलवेज वेस्टफुल, दे वर टॉट, सो इट्स रॉन्ग। एब्सोल्युटली राइट वसुंधरा, वेरी गुड, करेक्ट। हाँ जी, इसके बारे में बताइए, लाइफ टाइम गारंटी समथिंग दैट शुड बी डिस्करेज्ड, क्विकली। भाई यहाँ पे ऑथर सजेस्ट करेगा, क्या सजेस्ट करेगा कि जो लाइफ टाइम गारंटी है इज समथिंग दैट शुड बी डिस्करेज्ड, इसको डिस्करेज्ड करना चाहिए, लाइफ टाइम गारंटी किसी की नहीं देनी चाहिए। क्या ये सही बात है? ऑथर सजेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? अच्छा, क्लैरिटी नहीं है ना, कंफ्यूजन भी है तो रख लो इसको अभी के लिए। लेट्स कम टू सी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। सी कहता है पैकर्ड प्रेजेंटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ही डायग्नोस्ड। पैकर्ड आदमी ने प्रेजेंट किए थे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट ही डायग्नोस्ड। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है और चॉइस किसके बारे में? पैकर्ड के बारे में। क्या ऑथर पैकर्ड से एग्री कर रहा था? नहीं कर रहा था, he was just putting his information, isn't it? इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, पर उससे एग्री डिसएग्री नहीं कर रहा था, इसलिए सी आंसर हो ही नहीं सकता। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट यू कैन क्लियरली सी, करेक्ट। ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, हो नहीं सकता। लास्ट चॉइस, some perceptions about humans are based on assumptions। सर इसका मतलब ही समझ में नहीं आया, इज इट ट्रू? है ना, तो क्या आंसर मार्क करेंगे? बी। अब आप मुझे बताइए, ये चॉइस मार्क करते समय आपको पता है कि मैं श्योर नहीं हूं बी आंसर होगा या नहीं, एम आई राइट? क्यों? क्योंकि आप बी इसलिए मार्क कर रहे हो, डी समझ नहीं आया था सर। इस केस में आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को। अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, अगर आपको रस्सी पे एक पैर पे चलना पसंद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, रिस्क ना लें। इज इट क्लियर? क्योंकि एटलीस्ट यू नो दैट वेदर यू आर गेटिंग राइट आंसर और नॉट, है ना। चलो अब समझते हैं बी और डी में से अगर आंसर सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करें और क्या रीजन है जिनकी बेसिस पे सेलेक्ट करें। पहली बात, बी लाइफ टाइम गारंटी कहां लिखा है भाई? लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, बीच के अंदर कहीं, ठीक है चलिए आ जाते हैं। The very idea of the lifetime guarantee conjured up the spectrum of unemployment and shuttered factories। ये जो लाइफ टाइम आइडियाज, लाइफ टाइम गारंटी है, इसने क्या किया है ये बताया गया है, एम आई राइट? लाइफ टाइम गारंटी ने क्या किया है ये बताया है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब क्या इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ऑथर इसको डिसएग्री कर रहा है या इसको कह रहा है कि इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं ना, वो सिर्फ एक एविडेंस प्रोवाइड करा रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ था। ऑथर इससे एग्री कर रहा है डिसएग्री कर रहा है पता ही नहीं, ऑथर ने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, इंफॉर्मेशन को स्टेट किया है। सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन सेज contrary to what we might assume, so D is correct। वेरी गुड वसुंधरा, ऐसे वसुंधरा करेक्टली सेट। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे हम।
contrary to what we might assume. क्या मतलब हुआ? जो हम सोचते हैं उसके ऑपोजिट वेस्टफुलनेस कोई नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है, ये हमें सिखाया पढ़ाया गया है। इसीलिए चॉइस क्या कह रही थी? 122 का डी आंसर चॉइस विच सेज some perceptions about humans are based on assumptions. Is it clear why this is the answer? अभी एकदम क्लियर हो रहा होगा, I understand. हाँ जी बेटा। Very good question she has asked. Let me rephrase the question. So she has asked one question that whenever there is a question, which type of questions which are coming and asking, that what author suggest. ठीक है, जैसा कि 122 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के अंदर क्या हमें आंसर्स ऑथर के स्टेटमेंट से मिलेंगे, क्लेम से मिलेंगे, और वी मे लुक फॉर द प्रेमाइसेस और फैक्ट्स एज वेल. सो द आंसर इज 95%, 95 to 99% in fact, to be precisely 98% I can say. 98% केसेस में आंसर कहां से मिलेगा? ऑथर के क्लेम से मिलेगा, प्रेमाइस से नहीं मिलेगा. मैं बताता हूं क्यों, उसका रीजन भी. हमसे पूछा जा रहा है ऑथर किस पे अग्री या डिसएग्री करता है. एम आई राइट? अब किसी के अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट देखने के दो ही तरीके हैं. क्या? या तो उसकी बात सुनी जाए या उसके एक्शंस पे गौर किया जाए. इज इट क्लियर? जैसे मैं कहूं कि मुझे एसी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने ऐसा बोला, इज इट क्लियर? तो उसका मतलब क्या हुआ? आई डू नॉट अग्री टू एसी. या फिर मैं जाके एसी को बंद कर देता हूं. इज इट क्लियर? तो यू कैन सी दैट आई डोंट लाइक एसीज. इज इट क्लियर? इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है. सो इसीलिए आइदर लुक व्हाट ही सेड और हिज एक्शंस. सो बहुत ही कम परसेंटेज के पैसेजेस हैं, मे बी लेस देन 2%, जिन पैसेजेस में इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट्स एक्शंस लेके जाते हैं ऑथर के, या एक्शंस के थ्रू बताया जाता है, until unless it is a literature passage. इसलिए मैंने कहा 98% केसेस में by looking at author's claim you can identify what he is saying, and this is what we are doing here as well. तो आपको क्या करना है, सिंपली जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, ऑथर का आइडिया पूछा जाए, उसका सजेशन पूछा जाए, तो आप ऑथर के क्लेम पे ही जाएंगे. जहां जहां ऑथर ने क्लेम किए उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या चाहता है, आप आंसर प्रोवाइड करा देंगे. इज इट क्लियर? सही बात है, गुड. मूविंग टू, और कोई क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस करना है भाई? 124, ठीक है. ठीक है, लेट्स डिस्कस 123, 124, 125, सारे डिस्कस करने हैं. ठीक है. According to the passage, what is the difference between the approach of this person and this person in their respective works? ठीक है, मतलब इस आदमी के अप्रोच में क्या डिफरेंस था और इस आदमी के अप्रोच में क्या डिफरेंस था. दोनों की अपनी अपनी अप्रोचेस हैं, वो उनको पता नहीं है. चलिए डिस्कस करते हैं. ये कैसे करेंगे डिस्कस? पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो इफ यू आर नॉट श्योर, गो एंड रीड द पैसेज कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे वी कैन प्रोवाइड द आंसर्स. 123, okay. A Packard approach focused on identifying the problems where his focus solving the problem. He was unavailable to understand the bigger picture, whereas he was able to. And he was more into bringing the data, where he was drawing inferences of such data. And there was no differences between both the approaches. They both were at the same place. हाँ जी भाई, कहाँ से जाएंगे? पैसेज में जाएंगे, पढ़ेंगे कहाँ लिखा हुआ है. लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, they have said it. The waste makers is an X-ray of the American way of life. Society that replaces scarcity with overabundance, forced fate of these easy credit with the spills. Packard sees the problem as largely ethical. Okay, so he sees the problem as largely ethical. इसका क्या मतलब हुआ? Largely ethical इसने देखा, इसका मतलब दूसरे वाले ने ethically largely इसको नहीं देखा. Hence the answer that we should mark is bigger picture. B as an answer. Clear? समझ में आ गया? How did we do it? Simple way. ऊपर गए, fetch किया, आंसर मार्क किया. Yes बेटा. Why bigger picture? Why? Why bigger picture? Because ऊपर लिखा हुआ है
Packard sees the problem as largely ethical. His concern is more decay and the cell commercialization of everyday life. इससे हमें पता लगता है कि उसने बिग पिक्चर को देखा, उसने लार्जली इस चीज को, प्रॉब्लम को एक बड़े तौर पे देखा. बट ऑप्शन में तो अनेबल लिखा, अनेबल टू अंडरस्टैंड लिखा है ना. Packard was unable to understand the bigger picture. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है Packard see the problem is largely ethical. Okay, his concern is more. So एक काम करते हैं, इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार. Third paragraph का, let's read it. Some observers was quick to disapprove this person's book, The Waste Makers, offering a searing critic to the mid-century US at the height of its consumerist prompt. He details at length the different form of planned obsolescence, from products engineered to fail to those that are simply meant to be more desirable than last year's model. And at almost every level of society, it is understood that such obsolescence is necessary feature of a healthy economy. From politicians to all these problems and to this problem. So the very idea of the lifetime guarantee conjured up the specter of unemployment in shuttered factories. The waste makers is an X-ray of the American way of life. A society that replaced scarcity with abundance, forced fat on easy credit, and urban sprawl. So Packard see the problem as the largely ethical. His concern is more decay and the cell commercialization of everyday life. Yet, at no point done he envision an ecological catastrophe. Soon after, this person about the devastation effects of agricultural pesticides would start to alert people to this problem. I think Brinda, now it is clear. लास्ट की 2 सेंटेंसेस साफ साफ बता रहे हैं कि उसने जो एनविजन किया वो कितना एनविजन किया, क्योंकि उसके कोई पॉइंट नहीं था व्हाट ही डज इन एनविजन एज ए इकोलॉजिकल कैटाफोरस्कर. और जो सेकंड वाला इंसान है, इसने इसको आइडेंटिफाई किया और लोगों को अलर्ट करना प्रॉब्लम के लिए शेयर कर दिया. इज इट क्लियर? Yes sir, thank you. 124 question, which piece of evidence would weaken the claims made by the author in the passage? Very good. हमें क्या करना है? वीकन करना है. किसको? क्या क्लेम है ऑथर का? ठीक है, मतलब डिस्पोज नया है या पुराना? वेस्ट नया है, लोगों को पहले से आता था? नहीं, सिखाया गया है. राइट, दीज वर द क्लेम्स. ठीक है. ए, दिस Neanderthals, a cousin species of humans, used to waste 50% of their food. ये लोग 50% ऑफ फूड को वेस्ट करते थे. क्या ये सिखाया गया है? नहीं. करेक्ट, they are doing it. They were doing it. So we shall keep it. B, a recent study by the UN suggests that humans waste more than 20% of their food. Sorry, ये वीकन नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? करेक्ट. भाई देखो, अगर इसको देखा जाए, वेस्ट इज रीसेंट फिनोमिना, दिस इज अ क्लेम. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ. आदित्य वांट्स टू से समथिंग. Sir, A is also not weak. It is mentioned A cousin is also species of humans. Not weak. sorry, come again. A is not weakening the claim made by the author. Okay, why? Because it is written cousin species of humans. Author has made claims regarding humans, not related to species that are related to humans. Bingo, bingo, बिल्कुल ठीक बात है. A is also not weakening. Why it's not weakening? Because talking about, not talking about humans, they're talking about cousin species of humans. Correct, इसलिए A weaken नहीं कर रहा है. B क्या कर रहा है? एक recent study of the UN suggests that humans waste more than 20% of their food. मुझे एक बात बताइए, why this is not weakening? मुझे लगता है ये वीकन कर रहा है. Yes sir. नहीं, पैसेज माइट बी टॉकिंग अबाउट, बट मुझे वीकन किसको करना है? ऑथर की क्लेम को. Sir, it is saying recent study. Recent study बोल रहा है ना वो. ओके,
Everybody understood about the B? Very good, Vasundhara. Everybody understood why B is not the answer? Everybody understood what is the B answer? Why B is not the answer? Everybody understood? एक बार दोबारा से सुन लीजिए, B क्या कह रहा है? Which piece of evidence would weaken the claim made by the author in the passage? ठीक है, चलो समझते हैं ऑथर ने क्या क्लेम्स किए. तो हमने देखे सभी जो भी ऑथर ने क्लेम किए हैं सारे. यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई जो recent study है by UN, they are suggesting that humans waste more than 20% of their food. मुझे लग रहा था कि बी आंसर होना चाहिए बिकॉज ये प्रूफ कर रहा है कि ह्यूमंस जो हैं वो इसको वेस्ट को पहले नहीं करते, राइट? मतलब वेस्ट को अपने आप नहीं कर रहे, इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है. करेक्ट है? तो भाई गाइस दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये स्ट्रेंथन कर रहा है बी आंसर चॉइस, ये वीकन नहीं कर रहा. दो क्लेम किए थे ऑथर ने, मैं बताता हूँ आपको. इट्स नॉट द राइट रीजन कि भाई प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है, ये वो बात नहीं कर रहा है, उसे इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्लेम क्या? उसके दो क्लेम थे मेन. पहला, ये नया नहीं, नया है, पुराना नहीं है. दूसरा क्लेम, हमें सिखाया पढ़ाया जा रहा है, हमारे लिए इंस्टिंक्ट नहीं था. ये क्या कह रहा है? एक रिसेंट स्टडी आई है, वो क्या बता रही है? इंसान पर 20% फूड वेस्ट करता है. रिसेंट स्टडी, क्या पता लग रहा है? नया है ये पुराना? नया, पहला चीज. दूसरा, क्या ये इंस्टिंक्ट आ रहा है या बताया जा रहा है हमें, या पढ़ाया जा रहा है हमें? रिसेंट स्टडी की गई है जिसके थ्रू हमें बताया जा रहा है कि हम वेस्ट करते हैं. तो हमें पता था इसके बारे में? Was it an instinct? No. It has been taught to us. Yes, it is being teaching to us. It is being teaching to us. They are teaching it to us. Is it clear or not? कब हुआ था ये? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इन सब चीजों में हुआ था ये. वेस्ट के बारे में पता लगा था. अब हमें सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि हम खाना वेस्ट करते हैं. ऋषभ, क्लियर? ये स्ट्रेंथन कर रहा है आर्ग्यूमेंट को कि हम खाना वेस्ट करते हैं, 20% खाना वेस्ट करते हैं. हमें इसके बारे में नहीं पता था. we did not have any instinct, but it has been taught to us. Yes, it is being, they are teaching it to us. Sorry, come again. हाँ, बता सकती है किसने मना किया? हाँ, रिसेंट स्टडी का मतलब क्या हुआ? अभी रिसेंटली हुई है. हमें कहा जा रहा है कि वेस्ट जो है वो पुराना नहीं है, नया है कॉन्सेप्ट. करेक्ट है? तो रिसेंट स्टडी मतलब अभी हुई है स्टडी, जिसके पता लग रहा है कि इंसान पहले खाना नहीं वेस्ट करता था, अभी जो खाना खा रहा है उसमें 20% वेस्टेज कर रहा है. करेक्ट है? तो ऑथर ने दो क्लेम किए थे कि भाई एक तो नया है, दूसरा हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जा रहा है. हमें सिखाया जा रहा है कि तुम खाना वेस्ट करते हो, हमें पता लग रहा है. इसके पहले हमें पता था? नहीं पता था. सिंपल. क्योंकि एक सर्वे किया गया और सर्वे के अंदर हमें बताया गया, सर्वे सजेस्ट कर रहा है हमें कि ह्यूमन खाना वेस्ट करता है. सर्वे बता रहा है हमें, तो हमें बताया जा रहा है ना, हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है. जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, प्लास्टिक आया, ये 1950s में क्या सिखाया गया इन्होंने, क्या बताया इन्होंने? समझने की कोशिश करें. कैसे सिखाया गया आपको? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बायोडिग्रेडेबल लेके आए ये लोग वो टीवी वाले रैपर्स लेके आए या जो भी चीजें लेके आए जो कि आप डिस्पोज कर सकते थे उनको. तो डिस्पोज वर्ड आपको सिखाया गया. आपको पहले इसके बारे में कुछ पता था? नहीं. वर यू यूजिंग इट? नो. इट हैज बीन टॉट टू यू. क्यों पढ़ाया गया? जैसे कि उनका बिजनेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जा सके, उसके थ्रू आपको ये सिखाया पढ़ाया गया. तो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये सब एक मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू आपको सिखाया गया है और ये मार्केटिंग का एक तरीका था. अब जैसे आज आपको सिखाया जा रहा है कि भाई आप जैसे मान लीजिए आप टीवी में भी देखते हैं ऐड, तो आपको पता है जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जाते हैं वो भी क्रिटिकल रीजनिंग यही इसी के थ्रू बनाए जाते हैं. आप देखिए, रियलाइज कीजिएगा, एक फैक्ट मैं आपको देता हूँ, यू विल रियलाइज इट. आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा उन चीजों पे खर्च करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है या जो आपके लिए जरूरी नहीं है, और सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं चीजों पे खर्च करते हैं. क्यों करते हैं? अब आप खुद एक बार अपने आप को स्कैन कीजिए, पिछले एक महीने में आपने क्या चीज परचेज किया और उसकी आपको कितनी ज्यादा आवश्यकता थी, कितनी डायर नीड थी आपको उसकी जरूरत थी. यू चेक इट एंड यू विल रियलाइज कि
आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, तब जाके आपने वो चीज खरीदी थी। ठीक बात है, राइट? तो अल्टीमेटली क्या कहा जा रहा है, मार्केटिंग का एक रूल होता है, वो ये रूल ये होता है, मार्केटिंग ये कहती है ओके आदित्य, मार्केटिंग ये कहती है आपको, अब जो ये मार्केटिंग आपको सिखाई जाती है वही सिखाई जाती है कि लोगों के बीच में उस चीज की आवश्यकता क्रिएट करो और फिर उसे वो बेच दो, वो उसे खरीद लेगा। अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आप उसे लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बोलूँ कि मैंने ना एक बहुत बढ़िया दवाई है मेरे पास, जस्ट कॉस्ट ₹10, आप इसे ले लें और ये आपका सर दर्द एकदम गायब कर देगी। आप इंटरेस्टेड होंगे? आप बार्गेनिंग करेंगे, 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं पता है क्या समझूंगा, आपको सर दर्द हो ही नहीं रहा, आप रहने दो, जाओ यहाँ से। अगर किसी को सर दर्द हो रहा होता तो वो कुछ पूछता, कहता ले 10 रुपए ला बाम दे दे, फटाफट बात खत्म कर। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात है। तो ये मार्केटिंग इस तरह से क्रिएट की जाती है। ये मैंने ना बहुत ज्यादा आगे तक मैं ले गया उसको, एक्सट्रीम लेवल पे। हालांकि ऑथर ये कहना चाह रहा था, ऑथर ये समझा रहा था कि वेस्ट क्या है, नया मॉडल है, हमें सिखाया पढ़ाया गया है, पहले से ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसने पूरी कहानी स्टोरी लिखी है, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने की कोशिश की है इसके बारे में। इज इट क्लियर? अब एक स्टडी बताई गई है, एक स्टडी आती है, आप बताती है कि भाई आप लोग, मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ। कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर नहीं सॉरी ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ रहा था, कहीं पे एक छोटा सा ऐड आया, नीचे लिखा हुआ था, अगर आप भी गाड़ी को, वो कार होती है ना अपनी, उसमें 2 मोड होते हैं एसी के, एक तो उसमें अंदर अंदर घूमती रहती है हवा, एक में बाहर घूमती रहती है, बाहर से आती है हवा। उसमें लिखा था भाई अगर आप अंदर ऑटो मोड पे रन करते हैं ना एसी, तो सावधान हो जाइए, ये गलत है। इज दैट क्लियर? अब मैं सालों से करता आ रहा हूँ, मेरे पिताजी, उनके पिताजी करते आ रहे हैं जब से एसी चल रहा है कारों में, राइट? इतना पुराना तो खैर नहीं था, है ना, लेकिन हाँ शायद मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया हो। कहने का मतलब इतना सा है कि एसी को आप सालों से ऐसे यूज करते आ रहे हो, until unless that news came up which is telling us कि नहीं you don't have to do this, आपको उसको ऐसे करना चाहिए, फिर एक प्रोडक्ट बेच देंगे साथ में, राइट? कि जी ये करोगे तो इससे ठीक हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग जो हवा ले रहे हो, थोड़े टाइम बाद में ये जो हवा है ये बिकेगी मार्केट में, जैसे आज भी बिक रही है, आपको पता हो तो। हाँ जी, हाँ बिक रही है आजकल हवा, हिमालय की शुद्ध हवा को लोग पैक कर करके बेच रहे हैं, and it is available on Amazon. Yes, it is available on Amazon. आप एक पोल्यूशन वाली जगह में रहते हैं, दिल्ली जिसका नाम है, आपको ठंडी हवा नहीं मिल पाती, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, आप परचेज करें, बकायदा हिमालय की हवा आएगी आपके घर, राइट? सो कहने का मतलब क्या है, वो गोबर के उपले देखे होंगे ना आपने, अमेजोन में बिक रहे हैं अच्छे पैसे में, राइट? सो कहने का इतना सा मतलब है, नीड क्रिएट करो और बेचो। तो ये रीसेंट सर्वे क्या हो रहा है, रीसेंट सर्वे आपको पढ़ा रहा है कि आप खाना वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं था उसके पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट हैज बीन टॉट टू यू। ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऑथर ने इसको लिखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। गंगा जल ट्रेंडिंग कर रहा है आजकल, बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड आदित्य हमें ही भेज देना he is saying that he has purchased 2-3 बुके। When I asked ना कि 1 महीने पहले क्या लिया था, तो he said 2-3 बुके लिए थे उन्होंने। So ultimately when you look at other things also what you are purchasing, तो आप देखेंगे अपने घर में जो जो आपने चीजें खरीदी हैं, ज्यादातर क्यों खरीदी हैं, यूसेज कम है, बट बिकॉज यू आर, मुझे याद है एक वो सारेगामा पा करके आ रहा था, कारवा कारवा, देखा है क्या आप लोगों ने? इसमें पुराने गाने आते हैं, उसका कॉस्ट 5,000 रुपीज है मिनिमम, 4,000-5,000 का कॉस्ट था उसका, और लोग उससे पुराने गाने सुनते थे। कितने लोग हैं घर में बेटा, कितनी बार चलता है वो? चलता है घर में? बहुत कम। स्टार्टिंग में जब आया होगा तो चला होगा, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार चला होगा, उसके बाद तो बंद पड़ा होगा, कोई उसे नहीं पूछ रहा होगा, करेक्ट है? दिस इज व्हाट हैपनिंग। सो व्हेन दे आर, उन्होंने आपको बताया था कि गिफ्ट दो उसको, उन्होंने ये नहीं कहा था अपने लिए खरीदो। हैव दे टोल्ड यू दिस? दे हैवंट टोल्ड दिस कि अभी कारवा अपने लिए खरीदो, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। कहा गिफ्ट दो इसको, गिफ्ट दो बेटा, 5,000 गिफ्ट है इसको, गिफ्ट दो, खुद मत लेके आने, तो खुद तो सुनोगे नहीं तुम। तो ये बोल रहे थे कि भाई आज की इंटरनेट की दुनिया में डोंट लिसन टू दिस, इंटरनेट वाला चीज है, आप तो कार वाले के घूमो। मतलब आज आप मोबाइल में चाहे जो गाना वीडियो देख सकते हो पुराने गाने का, ठीक है, जिस तरह के गाने आप चाहो सुन सकते हो, जहां चाहे जहां सुन सकते हो, पर आप कार वाले के घूमो।
वो पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने टेक्निक डाला, चलो उसको गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट का बना दिया। आज हम लोग उसको गिफ्ट करते फिर रहे हैं। गिफ्ट लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, सुनने वाला कोई नहीं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये कहां से शुरू हो गया? खैर, लेट्स मूव ऑन। सो पैसेज अच्छा बनाया है इसने, और काफी सारी चीजें इसने सही सही बताने की कोशिश की है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। इसलिए आई वाज ट्राइंग टू से कि ये जो सेंटेंस है ना, ये पढ़ा रहा है हमें एक्चुअली, कि रिसेंट सर्वे में तुम खाना वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम समझो, ठीक है। जैसे कल को एक आएगा, बताएगा कि भाई आप जो पानी पी रहे थे आरओ वाला, वो इतना ज्यादा प्रदूषित था, पता है आपको, आप बीमार हो सकते थे उसके अंदर, अब मैंने ना फिल्टर चेंज कर दिया, नाउ यू आर सेफ, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 25, what is the correlation between statements marked 1 and 2? So correlation क्या है statements का which is marked between 1 and 2? ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ भाई? आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है साफ साफ। पहला स्टेटमेंट, contrary to what we might assume that it is natural thing, no, we have been taught to do this, how to do it or how not to do it. आगे लिखा हुआ है डिस्पोसिबिलिटी को डिफाइन किया गया है, कैसे किया गया है, तो ये तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। क्या आंसर मार्क किया था भाई 125 का, जो कंफ्यूजन हुआ? When you read a answer choice और it says, qualifies में क्या फर्क है? sorry, What is the difference between supports and qualifies? okay, let me describe that. Statement 2 supports the claim made in a 1, ठीक है। Statement 2 qualifies the claim made in 2, okay। Qualifies का मतलब सब लोग जानते हैं ना इंग्लिश का मीनिंग, इसका भी मतलब सेम है कि जो चीज लिखी गई है उसके अनुसार ये जाता है, उसके हिसाब से ये चलता है, या उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, मतलब उन ग्राउंड्स पे ये क्वालिफाई करता है। बट दे आर नॉट सेइंग दैट इट इज सपोर्टिंग इट, इज इट क्लियर? क्वालिफाइज करना एंड सपोर्ट करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाई? क्वालिफाइज मींस दैट इट वर्क्स ऑन द सेम डायरेक्शन, but support means that it has been written to support it only, as an evidence or a premise it has been written down. Is it clear? That's why answer has to be A. So why the sentence 2 has been written? To support this, not just to put as a qualification or a qualify. कहने का मतलब ये है, दूसरे शब्दों में अगर qualify का sentence है, आप उसे हटा देंगे, doesn't matter at all in the whole passage and the meaning. वो नहीं किसकेगा। Clear? Okay, let's move on. Any confusions how to choose between A and D? Okay. D says statement 1 supports the claim made in 2. Oh, that's a opposite beta. D जो choice है वो opposite कह रहा है, A choice उसका उल्टा कह रहा है, मतलब A और D आपस में opposite है। अगर आप देखेंगे तो you'll realize कि जो claim है वो first में लिखा गया है, second में नहीं लिखा गया। डी चॉइस कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट में क्लेम है, फर्स्ट में एविडेंस है, मतलब सपोर्ट किया गया है। दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द पैसेज नंबर 5। द फॉरेस्ट एंड ट्रीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 126 to 130, 120 so say 130, sorry 126 से 130. Any questions? 129, okay. In the passage the author suggests that, अच्छा passage में author क्या suggest करता है? Which choice? A. A, ठीक है। ठीक है, फाइन, ठीक है। बस मुझे सिर्फ एक बार क्वेश्चन बता दो। Just tell me the question. So Tell me the question. 126. Wait a minute. Yes, beta? So which question are you discussing right now? No, we are discussing 126 question. Oh, sorry, 129 question. 129. हाँ बेटा, I am saying please make me understand the question. Question क्या पूछ रहा है ये बता दो।
करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑथर ने पैसेज में क्या सजेस्ट किया है, इसका मतलब ऑथर इससे एग्री करेगा डिसएग्री? सिर्फ लिखेगा नहीं उसको एज इट इज इट क्लियर? ये अभी देख लेते हैं, पर ए तो स्टेट किया हुआ एक स्टेटमेंट है, एम आई राइट? ठीक है। A decentralized system of forest management is a better system to manage forest in India. मतलब ऑथर ये कह रहा है कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का वो बेटर होगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी। आई एम रीडिंग द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, करेक्ट? It is perhaps unsurprising that the administration of a country known for its criminal apathy towards the environment would attempt to further weaken legislative and legal protections by tweaking definitions. There is no environment logic in conflicting plantations with forest cover to generate an impression of abundance. There is an urgent need of a targeting investigation to assess the extent of tree cover loss, along with encouraging a decentralization system of forest management. Yes, absolutely right. Author इसको appreciate कर रहा है, am I right? Appreciate कर रहा है, लेकिन क्या वो ये कह रहा है कि decentralization system of forest management is the better system to manage forest in India? इसे मैं कहूंगा क्या? What we shall call this choice? What we shall call this choice? A answer choice. वहां लिखा है, he is saying that there is an urgent need for targeting investigators to assess the extent of tree cover loss, along with encouraging a decentralized system of forest management. So he is saying that we should encourage that. लेकिन choice कह रही है कि system is a better system. क्या होगा बेटा, रीजन बताओ। करेक्ट, एंड व्हाई शुड आई एलिमिनेट दिस चॉइस? कम ऑन, एक्सट्रीम। व्हाट शैल वी कॉल इट? एक्सट्रीम। द कंपैरिजन जो हो रहा है ना यहाँ पर, बेटर देन दैट, ये एक्सट्रीम है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई ए इज नॉट द आंसर। तो जहां एक्सट्रीम बोलना है वहां तो बोल नहीं रहे आप लोग। ये एक्सट्रीम चॉइस है, ऑथर अग्री कर रहा है इससे, बट एक्सट्रीमली नहीं कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन या दिस इज द बेटर ऑप्शन। इज इट क्लियर? Next, B choice, the ground reality is far from what has been. तो ये हम easily relatable कर सकते हैं, that's why this is the answer. Next is 126. Why B and not the answer? Let's see. हाँ, तो जो main idea वही तो author कह रहा है. Yes. Sir, in 126, why can't the answer be A? Why cannot that be inferred? Let's discuss. हाँ बेटा, ऋषभ, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ओके, इस पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहा है? वी आर स्टिल डिस्कसिंग 129 एंड डिस्कसिंग कि व्हाई बी इज द आंसर। हाँ भाई, ऑथर में पैसेज क्या कहना चाह रहा है? पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहा है? The ground reality is far from what has been shown in the report released by the FSI. क्या ऑथर इस बात से अग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है? सजेस्ट क्या होता है? दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। नहीं, एग्जाम्पल अच्छा है, दोबारा बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है। आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो सजेशन होगा वो कंपैरिजन में आएगा। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, एनएलयू अच्छा है, लेकिन अगर एनएलयू ना मिले तो दूसरे पे चले जाना चाहिए। करेक्ट है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट आर यू सजेस्टिंग? एनएलयूज शैल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑथर सजेस्ट कर रहा है, बोल सकता हूँ या नहीं? बोल सकता हूँ, दिस इज माई मेन प्रायोरिटी। तो ये मेरा मेन क्लेम होगा। मैं पूरा पैसेज क्यों लिखूंगा? एनएलयूज क्या है, कैसे बनाए गए थे, वो बेस्ट क्यों हैं, क्या हो रहा है उनके अंदर, बाकी के कॉलेजेस भी कम नहीं है, बाकी कॉलेजेस भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि एनएलयू के बाद दुनिया खत्म है, राइट? तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, मेन आइडिया क्या है?
NLUs आर बेटर ऑप्शन। तो मैं क्या कहूंगा कि ऑथर अग्री करेगा, डिसएग्री करेगा, या ऑथर सजेस्ट कर रहा है NLU शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या बोला गया इस पे बताओ? अरे क्यों नहीं लग रहा है आपको? मुझे तो बताओ, मैं भी तो समझूं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्राउंड रियलिटी इज फार फ्रॉम व्हाट हैज बीन शोन इन द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द FSI। गाइस कोई ऐसा एविडेंस मुझे दीजिए जिससे हम ये रेफर कर सके। लिखा हुआ है यहाँ पे पैसेज में। ठीक है, आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। मैं FSI से पढ़ना शुरू करूंगा, इनफैक्ट उससे एक और लाइन पहले से। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं FSI से पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट सेंटेंस हम कर रहे हैं 129 क्वेश्चन की बी क्यों आंसर है ना। अंडरस्टैंड द FSI रिपोर्ट फाउंड दैट इंडिया लॉस्ट मोर देन दिस मच फॉरेस्ट कवर विद दिस स्टेट्स विटनेसिंग अ स्टैगरिंग रिडक्शन ऑफ दिस मच किलोमीटर्स। ये कौन बोल रहा है? ऑथर स्टेट कर रहा है कि FSI क्या कह रहा है। करेक्ट है, आगे देखो क्या कह रहा है। Much of the incremental growth in forest can be attributed to a rise in plantation, which can't be substitute for natural forests that are crucial for sustaining ecologies. Clear, not clear? तो ऑथर इसको काउंटर कर रहा है या इस पे अग्री कर रहा है या इस पे कुछ नहीं कह रहा है? काउंटर कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है the ground reality is far from what has been shown in report released by FSI। मैं इस पे अग्री कर सकता हूँ या नहीं कर सकता कि भाई ऑथर ये कहेगा या नहीं कहेगा? इसको अग्री कर सकता है नहीं कर सकता? अच्छा, ओ सो यू आर डिस्कसिंग कि ये अग्री तो कर रहा है, आप भी अग्री कर रहे हो, लेकिन ये सजेस्ट नहीं कर रहा। ओके, इज एवरीबडी क्लियर व्हाई 129B shall be the answer? ठीक है, नहीं कर रहा, अग्री, B is not the answer, give me another answer। फिर क्या करूं बताओ? जाके एग्जामिनर का गला पकड़ते? क्या बना के दिया है तूने? ऐसे क्वेश्चंस बनाते? सॉरी, none of the above, तो फिर none of the above should be the answer। अच्छा एक सेकंड, सजेस्ट करने का मतलब क्या कहा जाए? मतलब पैसेज में ऐसा क्या लिखिए जिससे आप कहीं सजेस्ट किया? तो अगर FSI के लिए भी उसको करना है तो ऐसा क्या लिखे वो सजेस्ट मान जाए आप? क्या सर ये सजेस्ट कर रहा है? बताइए जरा एक बार, अंडरस्टैंडिंग तो क्लैरिफाई करिए। यस वृंदा, अनफॉर्चुनेटली यस, बट जस्ट couple of minutes, okay, no sir, couple of seconds। हाँ जी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑथर अग्री कर रहा है उस बात पे? मैं कह सकता हूँ? नहीं, वहां पे तो सजेस्ट ही कर रहा है, अग्री थोड़ी कर रहा है। वेरी गुड, यू गेव मी योर आंसर, थैंक यू। Let's move on to the next question now, 126। Which of the following can be inferred from the passage? The report quoted in the passage is relatively twice each year. There is a possibility that the forest, so you are saying that why P can't be the answer? I'm How saying B why can be is inferred? A incorrect? Okay, why A should be the correct answer, is that we are thinking? Yes. ठीक है, which of the following can be inferred from the passage? ठीक है, when we are saying inference मतलब ऐसा चॉइस में पिक करना है जो ज्यादा क्लोजेस्ट हो पैसेज के। ए कह रहा है द रिपोर्ट कोटेड इन द पैसेज इज रिलीज ट्वाइस ईच ईयर। कहाँ लिखा है ये? Pioneer mentioned है report. कहाँ पर है? So I think first Second line line, में first ही है. paragraph। Okay, according to the state of forest report, a biennial report। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 2 साल में एक बार, और यहाँ चॉइस क्या कह रहा है? 1 साल में 2 बार, मतलब 6 मंथली बना दिया इसने, हाफ ईयरली बना दिया इसको, राइट? तो 2 साल में एक बार आने वाली है, तो आई थिंक इसकी वजह से इसको एलिमिनेट हम
बहुत आराम से कर देंगे. करेक्ट. ठीक B है. choice. There is a possibility that the forest cover in India is perceived to be more than what it actually is. ये तो पूरा पैसेज अपने आप बता रहा है. We have so many reasons to justify that. इसलिए B जो है वो आंसर हो सकता है. हाँ जी आदित्य, बिल्कुल ठीक बात है. I hope 126 and 129 are correct and understandable. Yes, Any sir. more questions to be discussed? So ये idiom वाला question कौन सा? 127. 127 question, one more. The author has used a classical idiom in the first sentence of the passage. I think this can be done. देखो यहाँ लिखा हुआ है, there is nothing to be gained by missing the wood for the trees, not of the trees. मैंने इसे 2 बार पढ़ा. जब मैंने इसको initially पढ़ा, मैंने इसे 2 बार पढ़ा. I thought that it should be of the trees, but they are saying for the trees. इसका मतलब क्या हुआ? The confusion that they are trying to create. There is nothing to be gained by missing the words for the trees. Okay. आपका क्या आंसर था वृंदा? 127. Bird's view. 1. Oh no, B. To be unable to understand a situation clearly, to get rid of bird's eye view of the situation. I think you do not have any evidences for that. It's just like not able to clear the understanding, क्योंकि पूरी तरह समझ में नहीं आया, इसलिए लग रहा है शायद A आंसर होना चाहिए. नहीं कि that's it. ऊपर से चीज दिख रही है, मतलब लाइक दिया भी है ना पैसेज में कि we think that. One second. So I अगर don't आप know. I thought देखेंगे- it should be bird's view because in my first read, that's why. Okay. So मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं तो यू गेट एन आइडिया विच क्लियरली डिफाइंस कि जो एफएसआई वाले कह रहे हैं वो सही नहीं है, एंड द थिंग्स आर डिफरेंट ऑन द ग्राउंड रियलिटी. हाँ, yes. उसको ये मेन आइडिया है. तो जो हमने क्वेश्चन में मार्क किया ना अभी, कौन सा था? 129 का बी, उससे मैच करता हुआ आंसर हमें चाहिए था यहाँ पर, which is not matching. ठीक है, so that's how we can eliminate it. 128, which one you marked, Divyansh? Which of the following can be deduced from the passage? Andhra has more forest, Telangana has more forest, Odisha has more forest. guys हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, ये कहाँ कितने हैं. और अगर आप लोगों ने कहा है सर, तो बताओ सबसे ज्यादा किसमें है और कितने? तेलंगाना में कितने हैं? I hope you might be getting it because first paragraph में लिखा हुआ है Andhra Pradesh had grown the maximum forest cover followed by Telangana, Odisha, Karnataka, Jharkhand. But guys आप ये भूल रहे हैं शायद कि उन्होंने ग्रो किया है, बोल रहा है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ग्रो किया है. कितने टोटल जंगल है वहां थोड़ी पता है हमें. इज इट क्लियर? इसलिए हम इसको नहीं मार्क कर सकते. सो यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि इसने कवर किया, इसने कवर किया, इसने कवर किया है, और किसने ज्यादा किया, किसने कम किया, किसका कितना ज्यादा है कितना कम है. द डेटा हैज नॉट बीन अवेलेबल, hence we will mark D answer. Okay, so actually में जो mistakes हमें मिल रही हैं, as a conclusion now guys, to conclude the session, I would suggest you the kind of problems that we are able to identify, which you have to take care to correct next out of questions. What do you have to keep in mind? Sir, inference. नहीं, ये शेयरिंग बंद कर सकते हैं. Yes, Vrinda? Sir, inference पे वर्क करना है. करेक्ट, इन्फ्लुएंस का ध्यान रखना है. वेरी गुड आदित्य, माया जाल में नहीं फंसना है, वर्ड्स का खेल है, यू हैव टू टेक केयर. एक्सट्रीम एंड आउट ऑफ स्कोप याद रहेगा, ठीक है ना? वर्ड्स देख के एक्सट्रीम में मत कूद जाना. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग.